Assalamu alaikum everyone. My name is Amina Kazim. And my name is Nimra Nasser. Thank you for joining us today in our Python Bootcamp, week 3, day 3. We start this event with the greatest name of Almighty Allah, who is one, the eternal and the absolute, who begets not and nor is he begotten, and there is none equal to him. Following universities are on board with us. We have Syed Atiq, DSC lead from DHS Safa University, Mohammad Huzaifa Shahbaz from Sir Syed University of Engineering and Technology, Shareb Ahmed from Sindh Madrasatul Islam, Rahil Siddiqui from Usman Institute of Technology, Mohammad Asadullah from NED, Varisha Rahman from Institute of Business Administration, Mohammad Bilal Khan from PAF KEET, Mohammad Osama Rajput from FAST, Nimra Javed from Habib University, and Sayyid On Muhammad from Virtual University. Okay, so the rules for this bootcamp are that we have a zero tolerance policy for any inappropriate behavior, resultant of which is again you guys being banned from every platform. Therefore, keep yourself mute, and you guys can ask questions in the chat section. Okay, so today's bootcamp will be conducted by Tarun Kumar. He's a top-rated freelancer on Upwork and currently working at seedcode.io as a data scientist. That is a very valuable core team member at Developer Student Club DSU chapter. So over to you, Tarun. I missed the intro in last two sessions. Thank you, Amna. So yes, guys, आज के लिए ready हैं सब. We'll be covering. अच्छा, SoundCloud का जो bot GIF देखा सबने? I fixed it. और उसकी मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी बना दी. I hope you guys have seen the GIF. Okay, nice. So I guess वहीं से start करते हैं आज. ठीक है. Okay, so let's start. आज Selenium का आखिरी session है, and I hope you guys found the tool amazing as much as I have in the last two sessions. और आज हम ऐसी functionalities cover करेंगे जो I think are really important in Selenium. I guess उनके बगैर इतना ज़्यादा valuable नहीं होता. Even though the value it has brought so far is really good, but कुछ still features हैं जो काफ़ी valuable. तो सबसे पहले आज कल वाली प्रॉब्लम से ही उठा चलते हैं कि SoundCloud का रिमेंबर हम पॉज करने जा रहे थे एंड पॉज बटन वाज नॉट वर्किंग, राइट? रिमेंबर, सबको याद है? 10 मिनट निकल गए थे ऐसे खामा कहीं. ओके, सो आई फाउंड समथिंग आउट. पहले इंस्टेंस खोल लेते हैं. ओपन new session over here. CD Python Bootcamp V3 day 3. Put a notebook. New script Python 3, and let's get started. Okay. SoundCloud pause. अच्छा, तो सबसे पहले ड्राइवर आई गेस सबको याद है कैसे करते हैं. Selenium import web driver. Driver is equal to web driver dot chrome driver dot get https serveroffice.com. Not Facebook यार, मैं Facebook बार बार क्यों जा रहा हूँ, SoundCloud जाने वाले. Okay, so this is how it is so far. हम SoundCloud पे आ गए. Then we just go into the search bar and input something, जिसके लिए मैं again फिर से कोड नहीं लिखूंगा. I'll just copy it over from the input we wrote the other day. ठीक है, and this is my search bar code. Search bar को XPath से निकाला था, if you guys remember correctly. Search bar dot send keys. Here's a key, the day she left. और इसमें डॉट सेंड कीज. अच्छा, इंटर सेंड करने के दो तरीके बताए थे. कैन समवन रिपीट के कौन कौन से तरीके थे? एक स्लैश न्यू लाइन. यस अनस, व्हाट इज दैट वे? ओके, अच्छा भूल गए. ओके, बाय इंपोर्टिंग कीज. यप, यस वंस बाय इंपोर्टिंग कीज डिक्शनरी. स्लीपी संडे सो गए सब. जो बात है यार.
तो एक तरीका था न्यू लाइन भेजना, सिंपल, राइट. अनदर वे वाज कि हम कीज इंपोर्ट कराते थे फ्रॉम द सेलेनियम डिक्शनरी. तो सेलेनियम के पास एक अपनी ऑब्जेक्ट होती है, फ्रॉम सेलेनियम डॉट कॉमन डॉट कीज इंपोर्ट कीज. आई थिंक यही था, नहीं था ये डॉट वेब ड्राइवर. दिस वाज इट. डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट कीज से कीज इंपोर्ट कराते थे. तो कीज डॉट इंटर क्या था हमारा, ये चीज. तो वी सर्च बार को हम ये इनपुट दे सकते हैं, न्यू लाइन भी दे सकते हैं, न्यू करके सेम चीज होगी. बेटर तरीका यह है कि आप कीज डॉट इंटर करें. ठीक है, याद आ गया आप? ओके, दैट्स गुड. सबको समझ आ गया कीज डॉट इंटर किस तरीके से काम कर रहा है? ऋतिक को समझ आ गया भाई? जवाब दो यार आज प्लीज, जल्दी जल्दी लेके जाना. बेहतरीन बेहतरीन. ठीक है, चलें. अब हम प्ले कैसे कर रहे थे नॉर्मली इसका, यूएक्स स्निपेट ए डॉट स्निपेट प्ले स्निपेट समथिंग कुछ नाम था इसका, राइट. तो मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर मैं स्निपेट एक्स यू प्ले बटन से काम करता हूँ, तो कॉल इट प्ले बटन इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS सेलेक्टर इनका टैग और प्ले बटन डॉट क्लिक करने पे प्ले हो गया. ठीक है, you guys noticed how it stopped as well today. Exactly. So apparently कल I think कोई instance का मसला था or something. It apparently work for some reason. खैर, एक दूसरा तरीका मैंने ढूंढा to verify why this was happening. तो मुझे पता चला if I use the X path of the play button it works exactly right. बिल्कुल करेक्टली काम करता है. ठीक है, एक तरीका मैंने ये ढूंढा. Another way I found out कि sometimes जब आपका जो ये वाला रेफरेंस है ना UX play button, उसका अगर रेफरेंस चेंज होता है या उसकी क्लास में कुछ एडिशंस होती हैं या कुछ भी चेंजेस होता है, तो उसका जो पीछे कोड है ना, द कोड दैट द जावास्क्रिप्ट यूजेस टू कॉल इट, उसको मल्टीपल रेफरेंसेस आ जाते हैं. और जब ये मल्टीपल रेफरेंसेस आ रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है. ठीक है, तो इट्स प्रेफर्ड है कि आप इंस्टेड ऑफ सिर्फ ये डिफाइन करने की कि ए टैग जिसका स्निपेट यूएक्स प्ले बटन है, आप दो तरीके कर सकते हैं. एक कि राइट क्लिक करके इस बटन का वो कर लें, क्या नाम है, कॉपी कर लें एक्स पाथ, इट विल वर्क एज वेल. ठीक है, एक तरीका ये है, व्हिच अगेन एज आई टोल्ड यू गाइस टाइम एंड टाइम अगेन कि मैं प्रेफर नहीं करता एक्स पाथ यूज करना. तो इसका हम सिमिलरली एक CSS सेलेक्टर से भी तरीका ढूंढते हैं बियॉन्ड दिस वन, ताकि दो तरीके हों, और दो तरीके होते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क दैट वे. तो आज कान पट रहे, सही है? आवाज कम करूं? व्हाट? यस, ड्रॉप काइंड ऑफ. अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए लोअर करते हैं, रुको. बेहतर है? ओके ओके, लेट्स कीप इट इन दैट. तो प्ले बटन हमें मिल गया. एंड प्ले बटन, अच्छा कोई बता सकता है मेरे पास ये एरर क्यों आया, यहाँ पे एरर क्यों आया मेरे सिंटेक्स का? डबल कोटेशंस, यस एग्जैक्टली. यप हसाम, यस. हमारे पास जो ये कोटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, देन अगेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है. तो हमें समहाउ इसको डिलिमिट करना होगा विद डिफरेंशिएटिंग कोड्स. तो ये बेहतर ही है कि ये कर लें, राइट. अच्छा, अनदर तरीका मैं हाथ के हाथ आपको ये भी बता दूं, आप लोगों को अगर पता नहीं है कि स्ट्रिंग काफी लंबी है और स्ट्रिंग के बीच में कोटेशंस आ सकती हैं, तो यू कैन यूज थ्री कॉर्ड्स किसी भी किस्म के कोटेशंस को वो कर लेते हैं. तो डॉट 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 और फर्स्ट ऑफ ठीक है. तो डजंट मैटर अब बीच में कौन सी किस किस्म की कोटेशंस आ जाती हैं, दे विल स्केप देम करेक्टली. अब प्ले बटन क्लिक करते हैं तो एक्स पाथ के साथ भी काम कर रहे हैं, राइट.
XPath के अलावा बेहतर तरीका जो मैंने आपको बताया था कि CSS सेलेक्टर है, तो XPath के सिमिलर एक CSS सेलेक्टर निकालते हैं इस चीज़ का। तो मुझे एक अपेरेंटली बात वो चलती है, दैट इज कि भाई अगर ऊपर से ऊपर जाओ ना, दैट इज साउंड बॉडी के अंदर साउंड आर्टवर्क, कवर आर्टवर्क, और ये जो साउंड कंटेंट वाला जिफ है ना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर पूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कि अगर यहाँ से देखें, दिस इज व्हाट आई वांट, राइट, दिस डिवीजन जिसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो आई जस्ट प्ले बटन दिस थिंग बाय CSS सेलेक्टर, और CSS सेलेक्टर में div डॉट साउंड कंटेंट, और साउंड कंटेंट के अंदर क्या है, जिसको कंटेंट के अंदर एक div है जिसका क्लास साउंड हेडर है, साउंड अंडरस्कोर हेडर, और इसके अंदर एक div है, और इसके अंदर एक div है, और इसके अंदर एक div है, राइट। सो div, और हमें इस div के अंदर अपेरेंटली हम यहाँ पे पहुंच गए होंगे अभी। लेट मी चेक, प्ले बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट निकालूंगा मैं कि पता चले मुझे HTML कोड क्या है, आउटर HTML, यस। तो आउटर HTML, और मुझे पता चला कि मैं प्ले बटन के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया हूँ, राइट। सो लेट्स ट्राई क्लिकिंग इट, डॉट क्लिक, वर्क्स, ठीक है। Yeah, Dennis, depends on you. If you want to be specific, you can do that as well. लेकिन मुझे पता है कि इस div के अंदर एक ही div है, तो why do, मतलब एक ही div है जो मुझे चाहिए, तो div है इसकी first div। अगर first div निकालना है तो फिर क्लास डालो ही नहीं, बेहतर है। मैंने साउंड कंटेंट का div का इसलिए डाला था क्योंकि इसके मल्टीपल divs हैं, राइट, इन इसके ऊपर। तो मुझे सिर्फ साउंड कंटेंट का div चाहिए, उसके अंदर उसका पहले वाला div चाहिए, उसके अंदर मुझे पहले वाला div चाहिए, फिर पहले वाला div चाहिए, फिर पहले वाला div चाहिए, तो बार बार पहले वाला div चाहिए, तो दूसरे divs को क्यों ही निकालूंगा, राइट। और क्लास क्यों ही दूं मैं, if I just want the first div। That's why it's convenient to use this selector। इसके अराउंड मैंने एक स्क्रिप्ट भी बनाई थी, which I was supposed to give you guys as an असाइनमेंट दूं तुम नहीं, बट छोड़ो, हैवी हो जाएगा, तुम लोग यार पहले ही दूसरे असाइनमेंट्स भी नहीं कर रहे है। क्लियर पाइथन साउंड स्क्रिप्ट डॉट पाई, ठीक है। तो मैंने इसकी स्क्रिप्ट एग्जैक्टली इस तरीके से बनाई कि यू कैन सी दिस स्क्रिप्ट कहाँ गई दिस थिंग, बंद। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इस स्क्रिप्ट को, फिर इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कल वाला पूरा कोड है कि इनिशिएट ब्राउजर एंड होल थिंग। ये वाला जो हमारा लास्ट टाइम प्रोग्राम लूप था, हमारे पास इस दफ़ा क्या होगा, सर्च एंड प्ले का लूप। और सर्च एंड प्ले क्या करता है कि सॉन्ग टू प्ले पहले पूछता है कि भाई यूजर से इनपुट दो, कौन सा सॉन्ग प्ले करना है, देन इट गोज टू अ सर्च फंक्शन। अब सर्च फंक्शन क्या कर रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय XPath, जो हमारी सर्च बार थी, सर्च बार को सर्च करेगा, उसको क्लिक करेगा, और उसके बाद सेंड कीज क्यू डॉट स्ट्रिप, मतलब जो भी सॉन्ग सर्च करने वाले हो उसको डॉट स्ट्रिप का फंक्शन क्या करता था, इफ समवन कैन रिमाइंड मी। रिमूव कैरेक्टर्स, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आसान, एक स्ट्रिंग का फंक्शन था, ओके। Trailing नहीं, trailing, I think that's what you're trying to say, trailing, yep, okay। and this white space बता रहा है, okay। so strip का function, whenever there's some content in your script, in your string, और content के बाद कुछ spaces या white space character आते हैं, could be new lines, could be spaces, could be tabs वगैरह, जो भी चीज़ें आ रही हैं, या starting में या आखिर में, वो भी कहीं वो हटा देता है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट कि भाई यूजर अगर गलत इनपुट देता है, वाइट स्पेस वगैरह डालता है आखिर में, पीछे कहीं पे भी, वो स्ट्रिप करके एक न्यू लाइन यहाँ पे साथ है। तो मैं ये न्यू लाइन क्यों भेज रहा हूँ सेंड कीज में साथ ही उसके, क्यूरी है, कैन एनीवन टेल मी, इंटर, तो मैं इंटर अलग क्यों नहीं कर रहा, आई कुड हैव सेंड स्ट्रिप भी स्लैश निकाल देगा, एनएस यस स्ट्रिप स्लैश न्यू लाइन में निकाल देगा, गुड पॉइंट, बट
आखिर में न्यू लाइन का क्या फायदा हो रहा है, ये न्यू लाइन करेक्टर डालने का? परम परम पम, परम पम। इंटर ही देगा नॉट, हाँ बेहतरीन, सर्च एग्जीक्यूट, यस बावल के सर्च भी वही वहीं पे, मतलब एक सिंगल लाइन पे अगर न्यू लाइन ही भेजनी है मुझे, व्हाई नॉट सेंड इट ऑन द सिंगल लाइन, क्यूरी के साथ साथ न्यू लाइन भी सेंड कर दे, सो व्हाटएवर आई टाइप आई प्रेस इंटर साथ ही साथ। तो एक सिंगल लाइन पे कीज डॉट इंटर भी कर दिया मैंने, वाई रिपीटेड, ठीक है। सर्च का फंक्शन समझ आ गया सबको क्या कर रहा है? यस ऋतिक, बिल्कुल यही कर रहा है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू। सर्च का फंक्शन सबको समझ आ गया? आई मूव टू सर्च एंड प्ले देन। ओके ओके ओके। सर्च एंड प्ले क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहा है, मतलब सॉन्ग टू प्ले, पहले इनपुट लेगा, इंटर द सॉन्ग यू वांट टू प्ले, फिर उसको वो सर्च करेगा, ठीक है। सर्च करने के बाद एक दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, प्ले पॉज, ठीक है। प्ले पॉज क्या कर रहा है कि जो वो बटन है ना, प्ले बटन, उसको निकाल के उसको क्लिक कर रहा है, और ओके, ये मल्टीपल क्लिक क्यों कर रहा है, सिंगल क्लिक चाहिए, ठीक है। उस ड्राइवर को निकालता है और उसको क्लिक कर देता है। प्ले पॉज अंडरस्टूड है? अभी एक्सप्लेन किया था किस तरीके से ये हमने अपना सीएस सेलेक्टर अपडेट किया, तो इट्स वर्किंग नाउ। प्ले पॉज पर फंक्शन सबको क्लियर है? आई होप होना चाहिए। यस 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 यस, गुड, ठीक है। चले, तो सर्च एंड प्ले क्या किया, इनपुट लिया, सर्च किया, सर्च करने के बाद प्ले पॉज किया, और प्ले पॉज एग्जिट मैंने एक वेरिएबल बनाया जो जिसके 3 वैल्यूज हो सकती हैं पॉसिबल, 0 1 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए नॉट 3, ठीक है। 0 1 2, अब इन तीनों के हिसाब से वो पूरा एक लूप चलेगा। लूप क्या करेगा, जब तक एग्जिट मतलब 2 नहीं दिया यूजर ने, मतलब यूजर ने x ने इनपुट किया, तब तक ये चलता रहेगा। वो बताएगा कि प्लेइंग फला सॉन्ग, प्लेइंग इफ प्ले पॉज एग्जिट 0, मतलब प्ले पॉज एग्जिट में 0 है, दैट मींस अ सॉन्ग इज बीइंग प्लेड। प्ले पॉज एग्जिट में 1 है, दैट मींस अ सॉन्ग इज द सॉन्ग इज पॉज्ड, और प्ले पॉज एग्जिट में 2 है, दैट मींस एग्जिट बोल दिया यूजर ने। तो मैं यूजर से बार बार इनपुट ले रहा हूँ कि भाई पी दबाओगे तो पॉज हो जाएगा, पी फिर से दबाओगे तो प्ले हो जाएगा, एक्स एक्स इंटर करोगे तो इट विल एग्जिट कोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन, इंटरेस्टिंगली तुम लोग यहाँ पे भी डाल सकते हो कि लिख प्रिंट करो प्लेइंग इफ प्ले पॉज एग्जिट 0 है, या प्ले कर रहे हो उसको प्रिंट करो। उसके बाद कॉमा प्रेस पी टू पॉज, अगर गाना पहले ही चल रहा है तो यूजर को ऑप्शन दो कि पॉज पी से करना है, अगर सॉन्ग पॉज्ड है तो उसको बोलो कि भाई प्ले करना है, ठीक है। पी प्रेस करने से प्ले हो जाएगा। और उसके बाद आई एम प्रिंट, ये यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट, जो भी इनपुट डाला यूजर ने, इनपुट वैल्यू अगर पी के बराबर है। डॉट लोअर क्यों कर रहा हूँ मैं, एनी आइडिया? डॉट लोअर का फंक्शन क्या करता है? केस, ठीक है। तो इनपुट को केस इनसेंसिटिव, मतलब बंदा कैपिटल पी इंटर करे, स्मॉल पी इंटर करे, कुछ भी इंटर करे, मुझे सिंगल लोअर केस में जाके चेक करूंगा, ताकि यूजर पे ये चीज डिपेंडेंट ना हो कि उसने क्या केस इंटर किया और उसको एरर नहीं दूं मैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाई आई एम डूइंग डॉट लोअर, उसके बाद चेक कर रहा हूँ कि पी के बराबर है कि नहीं। तो दिस वर्क्स फॉर बोथ कैपिटल पीज एंड स्मॉल पीज। अब उसने ये बोला कि हाँ भाई पॉज करना है, तो प्ले पॉज एग्जिट इज इक्वल टू 0, मतलब उसको अगर पहले प्ले हो रहा था सॉन्ग तो उसको पॉज कर दो, अगर पॉज ही था तो उसको प्ले कर दो। 0 मतलब प्ले, 1 मतलब पॉज, और 2 मतलब एग्जिट, ठीक है। अब इनपुट वैल्यू x, उसने x लिखा, तो प्ले पॉज एग्जिट इज इक्वल टू 2 और एग्जिट करना है तुम्हें। और फिर जब नीचे आके प्रिंट हेडर में तुम लोगों को समझाता हूँ, नीचे आके वापस वाइल के लूप में 2 उसके पास आएगा, तो ये एग्जिट करके वापस ड्राइवर डॉट क्विट हो जाएगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, प्रिंट हेडर समझाता हूँ मैं फिर। सर्च एंड प्ले का पूरा प्रोग्राम लूप समझ आ गया क्या क्या कर रहा है? हेडर फॉर यूआई, यस इट्स जस्ट फॉर द यूआई, उसके अलावा कुछ नहीं है। सर्च एंड प्ले का फंक्शन समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है फ्रॉम एनी लाइन ऑफ कोड? मैं भी कभी समझाऊंगा बिफोर आई मूव अहेड। शाम को समझ आ गया। एग्जिट कैसे हुआ? ऋतिक, यस, ओके, गुड क्वेश्चन।
पाई फिगलेट यूज की नहीं, आई डोंट यूज एनी काइंड ऑफ यूआईज फॉर टर्मिनल्स वगैरह, एंड आई ट्राई टू कीप इट वनीला एज पॉसिबल। अच्छा ऋतिक देखो, बार बार मैंने इनपुट वैल्यू में वाइल का लूप क्या है कि प्ले पॉज एग्जिट जब तक टू नहीं आ रहा, ठीक है, मैंने ये कंडीशन रख दी। तो मैंने बोला कि इनपुट वैल्यू यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, इनपुट अगर पी है, पी मतलब प्ले या पॉज, ठीक है, तो उसमें या तो यूजर पी लिखेगा जैसे, तो अगर पहले सॉन्ग प्ले हो रहा था तो पॉज कर दो, अगर पहले से ही पॉज था तो प्ले कर दो। लेकिन अगर यूजर इनपुट डालता है एक्स, एक्स मतलब एग्जिट करना है प्रोग्राम को, तो प्ले पॉज एग्जिट टू हो जाएगा। फिर ऊपर जब वाइल का लूप चेक होगा और प्ले पॉज एग्जिट नॉट इज इक्वल टू टू फॉल्स हो जाएगा, तो वाइल लूप एग्जिट हो गया, और जैसे ही वाइल लूप एग्जिट हो जाता है फंक्शन खुद ब खुद यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो फंक्शन खत्म हो जाता है तो यू रिटर्न टू द मेन फंक्शन जहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट लिखा हुआ है, ठीक है। ओके ऋतिक, आई थिंक तो दिस इज द हेडर फंक्शन। वो क्या कर रहा है, sys डॉट क्लियर मतलब पूरे stdio को क्लियर कर दो, पूरे टर्मिनल को क्लियर कर दो, और आप अपने पास फ्रॉम ओएस इंपोर्ट सिस्टम में sys करके sys क्लियर देंगे फॉर sys sys clear for Linux systems and for Windows systems sys cls होगा, ठीक है। ये बस लिनक्स का जो टर्मिनल है ना, आपका टर्मिनल को जो भी आउटपुट उसमें लिखा हुआ है उसको क्लियर कर देगा। मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ, मैं बार बार क्लियर क्लियर लिखता हूँ, इफ यू गाइस रिमेंबर क्लियर, तो कुछ भी लिखूंगा क्लियर उसको ट्रंकेट कर देता है। so this is why I'm doing a truncate and ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। और क्लियर करने के बाद प्रिंट हेडर, ये हेडर सिंपली प्रिंट करेगा, और बार बार क्लियर करने के बाद ये हेडर प्रिंट होना है। And this is, as you guys can notice, this is a triple quoted string, तो यहाँ पे पूरा वाइट स्पेस वगैरह जो भी लिखोगे, जिस तरीके से लिखोगे सब उस तरीके से आएगा। ओके, चलिए स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक लेसन है हमारे पास काफी प्यारा, विंडोज CLS साउंड। अच्छा यार, ओके ओके ओके, हाउ डिड यू मेट दैट हेडर, बेहतरीन, अच्छा क्वेश्चन है। गूगल करें एसकी जनरेटर, फर्स्ट रेस्पॉन्स आएगा नेटवर्क साइंस डॉट डी का, और उसमें अपना जो भी है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिल्ड पाइथन बूट कैंप आउटपुट, पाइथन बूट कैंप डू इट करें, और यहाँ पे जाके ऑल फॉन्ट्स, ठीक है। अब ऑल फॉन्ट से सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे, एंड जस्ट सेलेक्ट द वन यू लाइक। जैसे मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया था, शायद डूम नहीं यूज़ किया था, मैंने स्टैंडर्ड यूज़ किया था नीचे जाके। सो यस, do whatever you like with this. Tarun tech tips, Tarun coding tips, channel open करता हूँ मैं। खैर, okay, moving forward, let's try to run the script. So according to whatever we have learned so far, the script काम करनी चाहिए, ठीक है। script में तुम लोगों को कोई error तो नहीं दिखे ना, script आप करनी चाहिए। Let's see if it does or not. Python SoundCloud script.py, ठीक है, ये पूरा उसने प्रिंट कर दिया, ड्राइवर ओपन हुआ, ठीक है, ड्राइवर इज विजिबल टू यू गाइस। इसको रुको मैं, ओके नहीं, कहाँ पे आ गया, शिट, okay, so the driver is visible to you guys, I hope driver visible है, the script and the driver both are visible to you guys, okay, बेहतरीन, ठीक है। okay, अब enter the song you want to play, मुझे आमिर जकी का The Day She Left चलाना है, The Day She Left। सर्च हुआ, सर्च होने के बाद मेरे पास स्क्रिप्ट का एरर आ गया, और एरर क्या बोलता है कि अनेबल टू लोकेट एलिमेंट मेथड CSS सेलेक्टर, सेलेक्टर क्या है कि फलाना सेलेक्टर आपको नहीं मिला, मतलब मुझे प्ले बटन नहीं मिला। कैन एनीवन ऑफ यू गेस कि ये क्यों है? इवन तो आई कैन सी द हेडर राइट हियर, ये यहाँ पे मुझे वो बटन दिख रहा है, तो मुझे स्क्रिप्ट क्यों बोल रही कि क्यों स्क्रिप्ट ने एरर दे दिया? अलग आईडीज वाला केस नहीं, दैट्स नॉट द रीजन, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को अभी के अभी दिखाऊं तो दिस एग्जिस्ट, मैं यहाँ पे जाके सेलेक्टर से फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा, गूगल का काफ़ी अच्छा ये है कि तुम CSS सेलेक्टर यहाँ पे फाइंड कर सकते हो,
तो if you want to test whether your CSS selector is correct or not, आप यहाँ पे CSS select कर सकते हो body में Control F करके. So yep, this exists, proper तरीके से exist कर रहा है. Why did it not work then? Any ideas? Hard English word of the first session. This session is hard English word. What? Because of API data delay, I think. Okay, Ali Raza, you are काफी close. API data delay, okay. Okay, Subhan पहुंच के आया, guess. Page load नहीं हुआ था when the script searched. Yes, yep. कहाँ से देखा? Okay. So yes, that's the reason. If you guys just take a look at it, तो तुम लोगों को ये चीज दिख जाएगी. Because when data is not present from API, then there will be no content on page. यार रुको ना, तुम तो यार भाग रहे हो ना. रुको, पहले सबको एक सिम्ट में लेके आऊं कि उनको चीज ये समझ आए क्यों है यहाँ पे एरर. ठीक है, अब सॉन्ग आई वांट टू प्ले आमिर ज़की डे शी लेफ्ट, इंटर दबाया और मेरे पास उसी वक्त एरर आ गया. दैट मीन्स कि इवन तो द पेज इज लोडिंग, उससे पहले ही मेरे पास एरर आ गया. दैट मीन्स कि अभी तक पेज लोड नहीं हुआ था और उसके दौरान ही, पेज लोड होने के दौरान ही ये जाके सर्च कर रहा है यहाँ पे. If you guys can notice, सर्च करने के बाद प्ले पॉज इमीडिएटली फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और वो जाके ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट सर्च कर रहा है और उसको कोई चीज मिल नहीं रही. राइट? इज दिस अंडरस्टूड? सबको ये चीज समझ आई? ओके, आयना को आ गई, बेहतरीन. अनस को भी आ गई. जब बटन नहीं है तो कहाँ से वो क्लिक करेगा? यस 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 यस. async await like method will be used. Very good, Ajay, but async await is not something you use in Python. और async यो एक लाइब्रेरी है. async, आई थिंक ये हमारे नहीं, गलत लिखी है स्पेलिंग. Yes. Async IO, input output. This is in library for Python. जो if you guys are interested in asynchronous Python, इसको सर्च कर सकते हैं. इंटरनेट खराब नहीं हुआ. लिस्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करने पे ये एरर दे रहा है. Yes. Okay. So let's try to fix this. अगर पेज लोड नहीं हो रहा, उसके पहले ही सर्च कर रहा है. So what are the possible methods to fix this thing? कोई आइडियाज हैं? ओके, आयना बोलती हैं कि टाइम डॉट स्लीप. रियली गुड. स्लीप 1. एक सेकंड के लिए वेट करा दूं. लेट्स ट्राई इफ इट वर्क्स. तो स्लीप, ठीक है. टाइम से स्लीप इंपोर्ट कराया मैंने और मैंने बोला कि सर्च करने के बाद स्लीप फॉर अ सेकंड. ठीक है, लेट्स ट्राई इफ इट वर्क्स. क्लोज दिस अप. Zaki, then she left. Oh. Okay, so another way is कि try catch use कर सकते हैं with infinite while loop. तो ये क्या ही समझ आ गई how we fix the script together. This is one of the way you use to wait for the page to load. Can we do dictionary attack with the selenium? यार remind me to answer this at the end of the session. ठीक है, अभी इस पे जल्दी लेके चलते हैं. We are already 30 minutes in. ठीक है, समझ आया आज क्या किया है हमने? स्लीप 1 करके क्या हुआ? ओके, बेहतरीन बेहतरीन. एट्रीब्यूटेड लिस्ट ऑब्जेक्ट सर्च बार क्लिक करने पे ये एरर दे रहा है. समी, यू आर डूइंग find elements by CSS selector. You're not doing find element by CSS selector. ये चीज कंफर्म कर लो. You will be there is an extra s find elements. Elements नहीं find करने, तुम्हें find element करना है. वेरी वेल, बेहतरीन.
ठीक है। तो अब अली रजा ने बेहतरीन बात कर ली कि भाई बट स्लीप इज नॉट सजेस्टेड, गुड अप्रोच नहीं है। तो जैसे अनस बोलता है कि अनस की इंटरनेट स्लो है, राइट राइट अनस, आपकी इंटरनेट स्लो है, आपको स्लीप 10 लगाना पड़ेगा 10 सेकंड के लिए। या सुबान ने बोला था ये, आई एम कंफ्यूज्ड, यस ओके, सुबान ने बोला था। तो यस, तो ये चीज़ डायनामिक तो नहीं हुई, मतलब दिस थिंग इज अ कॉन्स्टेंट, मतलब एज इन कहाँ गया यस, स्लीप 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 स्लीप, ओके। तो टाइम नॉट स्लीप के साथ दो मसले आते हैं हमारे पास। नंबर वन कि ये एक कांस्टेंट है, हमेशा जितना आप टाइम बताओगे इसको ये उतना टाइम लाजमी लेगा। इफ दिस इज 2 सेकंड्स और 10 सेकंड्स, हमेशा उतना टाइम लेगा। तो इसमें क्या मसला आ जाता है, इफ द पेज लोड टेक्स मोर टाइम देन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इट विल फेल। तो मेरी स्क्रिप्ट 2 सेकंड के लिए काम कर सकती है, मतलब 2 सेकंड में काम कर लेती है मेरे पास, जरूरी नहीं है कि तुम लोगों के पास भी ये काम करेगी, राइट। मैं सुबान को अपनी स्क्रिप्ट दूंगा, वो बोल रहा है कि उसकी 10 सेकंड के बाद कुछ पेज लोड होगा, इट वॉन्ट वर्क फॉर हिम। मैं वही स्क्रिप्ट देता हूँ समी को और समी के पास 15 सेकंड चल रहे हैं, तो अगेन नॉट गुड। दूसरा ये आता है कि इफ द पेज लोड टेक्स मच लेस टाइम, तो टाइम वेस्टेड। अगर वही सुबान 10 सेकंड वाली स्क्रिप्ट मुझे देता है और मेरा ऑफिस का इंटरनेट अच्छा है एंड इट कैन लोड द पेज इन 1 सेकंड, मेरे पास जो 9 सेकंड वेस्ट हुए, दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, राइट। और वो डायनामिक भी नहीं है। स्लीप तुम्हें कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के साथ काम करने को नहीं देगी कि भाई अच्छा कोई कंडीशन लगा सकते हैं जो चेक करे पहले कि बटन है या नहीं। रियली क्लोज ऋतिक, मतलब समझो बस पहुंच गए वहां पे जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आज। तो किस तरीके से कर सकते हैं, ऊपर सुबान ने एक बात बोली थी कि ट्राई केस यूज करके हम कुछ काम करें, तो लेट्स ट्राई टू यूज दैट। ट्राई केस पता है ना क्यों यूज होता है, टू हैंडल एक्सेप्शंस। तो हमारे पास कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन हमारे पास कौन सा आ रहा था, नो सच एलिमेंट, राइट। कहाँ गया यार, क्लियर कर दिया मैंने, शिट लिखा होगा मैंने ऊपर, यस नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को समहाउ हैंडल करूँ कि 1 सेकंड के लिए वेट करो, नो सच एक्सेप्शन आ जाए, फिर 1 सेकंड के लिए वेट करो जब तक ये चीज़ तुम्हारे पास क्लियर नहीं हो जाती। व्हाट इफ वी यूज व्हाइल लूप व्हिच कीप्स ऑन चेकिंग इफ देयर इज अ बटन और नॉट, देन एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक व्हेन द बटन इज प्रेजेंट। नहीं बेहतरीन है ना, यस दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। तो चले ये काम करते हैं। और व्हाट विल इट बी लाइक कि भाई यहाँ से स्लीप यहाँ से हटाऊंगा, मैं स्लीप यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ट्राई करते हैं कि ये मिल जाए। और एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट कौन सी एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्ट कौन सी वो थी, एक्सेप्शन कौन सी थी गाइस, अब ये भी दिखाया तुम लोगों ने मैंने, if the element exists or not, तो no such element, yes। तो ये एक्सेप्शन है, no such element एक्सेप्शन। अब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन हमारे पास डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तुम लोगों को यहाँ से इंपोर्ट करानी होगी। सो फॉर सम रीजन मैंने इंपोर्ट कराई हुई है, या अभी अभी हुई, हाँ अभी अभी उसने VS कोड ने खुद कर दी। खैर यू विल हैव टू लेट पाइथन नो कि ये कौन सी एक्सेप्शन है, क्योंकि ये सेलेनियम बेस्ड एक्सेप्शन है, तो ये तुम लोगों को वहाँ से निकालनी होगी। तो द एक्सेप्शंस लाई इन कॉमन डॉट एक्सेप्शंस से मुझे इंपोर्ट करानी है कौन सी, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कि एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ कैच करवानी है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, प्रिंट द एलिमेंट वाज नॉट फाउंड, वेटिंग फॉर 1 सेकेंड। तो जब भी तुम्हें एलिमेंट ना मिले, टाइम डॉट स्लीप या सॉरी स्लीप 1 सेकेंड। और जब तुम्हें अच्छा ट्राई का जो ब्लॉक है ना, ये पूरे यहाँ पे पूरे कोड में काम करेगा जब तक उसको नो सच एलिमेंट का एक्सेप्शन नहीं आता। तो कंसीडर इज लाइक इफ एल्स के इफ, तो आपके पास एक्सेप्शन आई तो वो एक्सेप्शन क्या थी, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गई तो गो डाउन, अदरवाइज जस्ट स्टे इन दिस ब्लॉक। तो अगर स्टे इन दिस ब्लॉक जब ये चीज़ पूरी हो जाती है, प्ले बटन एग्जीक्यूट हो जाता है, ओनली देन ये वाली लाइन तक आएगा
अगर नहीं आएगा, एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो ये डायरेक्ट एक्सेप्ट में चला जाएगा और 1 सेकंड के लिए स्लीप कर देगा। तो एज आई ने प्रेफर्ड कि इसने सजेस्ट किया कि वी पुट इट इन अ वाइल लूप। तो वाइल ट्रू का लूप लगेगा, वाइल ट्रू हाई दिस एंड देन। अच्छा, तो वाइल ट्रू लूप तो हमेशा चलता है, तो ब्रेक कहाँ पे लगाना होगा? वी हैव टू समहाउ एग्जिट दिस लूप ना, तो कहाँ पे होगा एग्जिट? एनी आइडिया? कोड से देख के बता दो मुझे। ट्राई में, यस ट्राई में ब्रेक होगा, लेकिन कहाँ पे? अंडर प्ले बटन क्लिक, ठीक है, बेहतरीन। ये चीज सबको समझ आया है, जब प्ले हो जाता है, बेहतरीन, जब प्ले हो जाता है वी जस्ट ब्रेक द प्ले पॉज फंक्शन, ठीक है, लूप एग्जिट हो गया एंड वी रिटर्न बैक टू दिस थिंग। समझ आ गई ये पूरी? ये ट्राई एक्सेप्ट वगैरह किस तरीके से काम कर रहे हैं, सबको क्लियर है? ओके, ट्राई कैच या ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई कैच ट्राई एक्सेप्ट सेम थिंग। ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई कैच उसमें होता था, जावास्क्रिप्ट में होता था, तो एक्सेप्ट को तुम कैच बोल दो, कुछ बोल दो। Yes, so let's try to execute this now. Python SoundCloud script. और आमिर ज़की देशी लेफ्ट चलाना है मुझे। Can you guys can notice कि for some reason बहुत काम नहीं कर रहा, मैं इसको देखता हूँ बाद में। तो एलिमेंट वॉज नॉट फाउंड, वेटिंग फॉर 1 सेकेंड, खुद ब खुद 1 सेकंड के लिए वेट कर लिया उसने। सो इफ की कुछ लोगों की इंटरनेट काम ज़्यादा खराब कर रही है तो 10 सेकंड के लिए वेट करेगा, और जैसे उसको मिल गया इट विल गो अहेड, ठीक है। वी डिडंट हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन कि इतने टाइम के लिए वेट करो तुम। सबको क्लियर है ये बात? चले इसको डिबग कर देते हैं कि हाउ व्हाई इट डज नॉट वर्क। अच्छा, तो यू गाइस नोटिस कि मैं यहाँ पे जाके प्ले पॉज एग्जिट तो कर रहा हूँ और प्ले पॉज को बंद कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे जाके उस फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा, राइट? तो फंक्शन को कॉल मुझे करना होगा यहाँ पे। अब आई गेस काम करना चाहिए सही तरह से। यहाँ पे आमिर ज़की, पेंटर किया, पॉज कर दिया, पेंटर किया, प्लेड इट, पेंटर किया, पॉज कर दिया, एक से बार एग्जिट कर दिया फंक्शन, पूरी स्क्रिप्ट को। अंडरस्टूड? चले आगे बढ़ते हैं फिर। सो ये वाला जो काम आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डन दिस, तो आई फील गुड कि तुम लोगों ने ये खुद ब खुद वहां पे जाके पहुंच गए ना, जहाँ पे पहुंचाना था मुझे। कहाँ गया? यस, सो आई एम रियली ग्लेड कि तुम लोगों ने ये खुद ब खुद यहाँ पे पहुंच गए। तो ट्राई टू चेक ऑन स्लो इंटरनेट। कैन यू स्लो योर इंटरनेट स्पीड फ्रॉम नेटवर्क टैब देन ट्राई टू। हाँ यार अली रजा, काफी बेहतरीन 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 बना गया। लेट्स ट्राई दैट, सबको क्लियर हो जाएगा फिर। लेट मी ट्राई नेटवर्क, और तुम लोग यहाँ से जाके अपनी इंटरनेट को स्लो कर सकते हो डिलिबरेटली, है ना? यस, स्लो 3G, या नहीं सॉरी, स्लो 3G। सो इफ आई डू स्लो 3G नाउ इट विल be working quite slow. Let's try Amir Zaki. Okay, she left. नहीं। अली रजा, एनी आइडिया मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? I think that's how it's supposed to work. I hope. रन करके देखते हैं। रन सेलेनियम इन स्लो इंटरनेट।
इसका भी कोई प्रेफरेंस वगैरह का कोई होगा which we have to call it during the preferences? नहीं नहीं नहीं. Can I slow it down myself? Driver.set network conditions. तो इसने API to control or edit to Chrome driver and should be available for quite now. ठीक है. So let's try to do this. Maximal throughput, offline false, latency 5. 1 second के बाद ही चलेगा. Let's try if it works. Okay, don't judge me if I'm just copy pasting code. ये this is just for demonstration purposes. उसके अलावा कुछ भी नहीं है. That's what you do mostly in a professional environment anyway. Okay. Let's hope it works. अगर काम नहीं करेगा तो we'll just move it. But very good point, Ali Raza. कि अगर तुम लोग अपने ब्राउजर को स्लो करके देखोगे तो it will work. It will print more sleep command, sleep वाली जो फंक्शन में हमने बोला था कि waiting for 1 second. तो आमिर से की dash left. Okay, now आगे still उसी तरीके से काम कर रहा है. Let's try 500. Yep. That doesn't work. खैर अब बात ये थी कि बस इंटरनेट अगर आपका स्लो होगा तो the page will load much slower and yes you haven't called the cped function. Which cped function? You haven't called the copied function. What copied? अच्छा print header वाला function बोल रहे हो. चलो never mind आगे चलते हैं. Again this is still a bad practice. ठीक है तो ये जो पूरा कोड है तुम लोग कितनी दफा लिखोगे कहाँ पे लिखोगे राइट कहाँ गया कहाँ लिखवाया तुम लोगों ने मुझसे कोड वेरी नाइस यप हियर इट इज तो किस हर एलिमेंट के लिए ये कोड लिखोगे बार बार वीडियो जस्ट हैपन टू रिपीट इट ठीक है दैट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस क्योंकि ये जाके एक्सेप्शन बार बार हैंडल करेगा एक्सेप्शन कॉल होगी एंड इट विल सी फॉर अ सेकंड देन वो हेड बार बार काम करेगा ये चीज़ को तो देयर इज अ बेटर वे टू डू दिस तो एक साउंड क्लाउड एक चीज़ देता है और साउंड क्लाउड नहीं सेलेनियम हमें एक चीज़ देता है दैट्स कॉल्ड एक्सप्लिसिट वेट या एक्सपेक्टेड कंडीशंस अब एक्सपेक्टेड कंडीशंस वही वाली बात है जैसे ऋतिक बोल रहा है कि वी वेट टू सी वेदर एन एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट तो एक्सपेक्टेड कंडीशन इज सिमिलर टू दैट कि भाई अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा था जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्ले बटन नॉट फाउंड वेटिंग फॉर 5 सेकंड तो ये कोड मैंने पहले लिख दिया था आई एम ग्लैड यू गाइस गॉट द कॉन्सेप्ट और साथ ही उसमें हमने साथ चले गए उसमें ओके सेलेनियम प्रोवाइड्स अ रियली गुड वेट कंडीशन फ्रेमवर्क और उसको हम एक्सपेक्टेड कंडीशंस बोलते हैं एक्सपेक्टेड कंडीशन में तुम लोगों को दिखा देता हूँ क्या होती हैं सो व्हाट आर द डिफरेंट पेज लोड एक्सपेक्टेड कंडीशन हमें दिमाग में आती हैं क्या हम किसी एलिमेंट को देख सकते हैं क्या एलिमेंट कोड में विजिबल है ठीक है क्या एलिमेंट को हम क्लिक कर सकते हैं क्या एलिमेंट चेंज हुआ है so these are the different kind of conditions you can make your web driver wait for try catch versus async which is better यार बावल ये जावास्क्रिप्ट वाली बहस मुझसे नहीं करो यार छोड़ो बात की बात है yes copying code is easy pasting it at correct place is real art Sam yes बिल्कुल spoken like a true computer scientist okay so what are expected conditions तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि expected conditions खुद ब खुद वेब ड्राइवर को वेट कराती हैं जब तक कोई expected conditions मीट नहीं हो जाती जैसे फॉर एग्जांपल कुछ expected condition होती है कि टाइटल इज कि क्या हमारे जो ये वाला टाइटल है वेबसाइट का क्या ये चेंज हो गया क्या टाइटल में कोई चीज़ है टाइटल कंटेंट्स प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड फॉर एग्जांपल लेक्चर नोट्स में वापस आ गया हूँ तो यहाँ पे मेरा टाइटल चेंज हुआ तो ये टाइटल this is something you can
make the कंडीशन चेक या सेलेनियम को इस तरीके से चेक करवा सकते हो. There is visibility of element located, visibility of element को फार बाद में ढूंढो, presence of all elements located की आप एक लिस्ट दे रहे हो उसको, जैसे समी कर रहा था, बाय मिस्टेक कर रहा था, बट यू कैन ऑल्सो यूज दैट एज वेल कि फाइंड एलिमेंट्स बाय सीएसएस सेलेक्टर. उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स आ जाते हैं. क्या सारे के सारे एलिमेंट्स विजिबल हैं या सारे के सारे एलिमेंट्स लोकेट हो गए, उसमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग ना होना चाहिए. ठीक है. text to be present in element वगैरह ये सारी you can guys look at it in your own accord. Stillness of काफी अच्छा सा वो है कि remember when we refresh the what do you call it, हमने पेज रिफ्रेश किया था तो हमारे पास जो ड्राइवर था, जो पुराना रेफरेंस था हमारे पास एलिमेंट का, that raised an exception stale element reference. Remember स्टाइल एलिमेंट रेफरेंस जो हमने ड्राइवर को वो सर्च बार ढूंढी थी, सर्च बार के आगे गए थे, फिर बैक आए थे, सर्च बार का पुराना वाला एलिमेंट डिटेक्टेबल नहीं था और उसने स्टाइल एलिमेंट रेफरेंस की वो एक्सेप्शन थ्रो कर दी थी. एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, बेहतरीन. यस, हम करंटली हमारे पास जो आइडिया है हम प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट को भी यूज कर सकते हैं, हम एलिमेंट टू बी क्लिकेबल भी यूज कर सकते हैं. तो व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट, किसको यूज करें हम? दोनों वैलिड हैं क्योंकि अगर एक चीज प्रेजेंट है हमारे पास साउंड क्लाउड में अपने दिख जाती है तो इट्स क्लिकेबल एज वेल. ठीक है कि दिस कैन बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर नॉट और शुड. यस डेफिनेटली. तो जो तुम लोग जितना ज्यादा उसको डिलिबरेटली पर्टिकुलर करते जाओगे, स्पेसिफिक करते जाओगे, उतना बेहतर. दैट्स व्हाई वी यूज सीएसएस सेलेक्टर्स. तो यस, हम एलिमेंट टू बी क्लिकेबल यूज करते हैं. तो हमारे पास किसी ने हर उसको यूज करने की व्हाट यू कॉल इट एक्सपेक्टेड कंडीशंस को यूज करने की हमारे पास तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं हमें. नंबर 1 एक्सपेक्टेड कंडीशन इटसेल्फ. ठीक है, जिसको हम इस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं. नंबर 2 वेब ड्राइवर वेट का एक फंक्शन है जो वेब ड्राइवर को वेट कराता है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड कंडीशन और उसको बार बार उस कंडीशन को बार बार खुद चेक करता है. एंड विच ऑल्सो गिव्स अ टाइम आउट कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर वो एलिमेंट नहीं मिला, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद यूआई, या आपकी इंटरनेट खराब हो गई और समथिंग. ठीक है, या आपकी आईपी ब्लॉक हो जाती है यूजुअली. तो वेब ड्राइवर वेट का भी कुछ रेफरेंस देना होता है. इनफाइनाइट टाइम वेट तो नहीं करा सकते ना स्क्रिप्ट को, वी हैव टू टाइम आउट और उसको कुछ काम कर लेंगे तब तक. दैट्स व्हाई देयर इज वेब ड्राइवर वेट. और उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज यूज होती है, दैट्स बाय. बाय इज अ टपल जो हमारे एक्सपेक्टेड कंडीशन है ना उनको देना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो नहीं कर सकते ना. तो फाइंड एलिमेंट के बजाय हम एक टपल देते हैं और उस टपल में पहले सेलेक्टर होता है कि किस किस्म के तरीके से फाइंड करना है, इसने आईडी से फाइंड करना है और उसके बाद वो आईडी होगी. सो यू यूज इट बाय वेब ड्राइवर वेट. ड्राइवर दे दिया उसको 10 सेकंड के लिए वेट कराओ. मतलब 10 सेकंड इज द मैक्सिमम टाइम यू कैन वेट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट टू बी लोकेटेड. तो 10 सेकंड के बाद ये टाइम आउट एक्सेप्शन दे देता है अनटिल जब तक ये चीज कंप्लीट नहीं हो जाती और उसको एक टपल दे दिया अंदर. ठीक है, सिंटैक्स अगर याद नहीं हो रहा फॉर नाउ, या मतलब अभी तक समझ नहीं आ रहा तो याद कर लो, इवेंचुअली इट विल मेक सेंस. हेलो, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन आवर स्क्रिप्ट एज वेल. हमने ये जो झंझाल है वो उसको हटाना है, दिस थिंग, इस वाइल ट्रू वाले को हटाना है. सो हमें क्या तीन चीजें चाहिए थी which I just discussed. That was number 1 from selenium.common.ui, नहीं common webdriver.common.ui import by, नहीं by यहाँ से नहीं आता है, webdriver wait support.ui not common.ui. support.ui से webdriver wait निकाल दिया मैंने. selenium.webdriver.support से मैंने expected conditions निकाल ली. अच्छा, यूजुअली एक्सपेक्टेड कंडीशंस को एज इजी से हम वो कर देते हैं, एब्रीवेट कर देते हैं. तो इट्स बेटर टू फॉलो द कन्वेंशन wherever you use expected conditions. So from selenium.webdriver.common .support
डॉट सपोर्ट और डॉट कॉमन डॉट बाय, कॉमन डॉट बाय इम्पोर्ट बाय। ठीक है, तो जैसे जिस तरीके से यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट है और एलिमेंट यहाँ से निकाल रहे हैं हम। अच्छा, देयर इज अ गुड चांस कि जो आप सेलेक्टर ईसी यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड है, तो प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड समटाइम्स रिटर्न करता है एलिमेंट, समटाइम्स नहीं, कुछ जो एक्सपेक्टेड कंडीशन होते हैं वो एलिमेंट खुद ब खुद रिटर्न कर देते हैं। तो सिंगल लाइन ऑफ कोड ये चीज़ हो जाएगी कि भाई वेट अलग करें, उसके बाद सेलेक्ट अलग करें। इससे बेहतर ये है कि भाई जैसे ही यहाँ पे वेट भी करो और जैसे ही वो चीज़ मिल जाए रिटर्न इट टू द एलिमेंट। ठीक है, ये एक ही लाइन में कर देता है पूरा काम सारा, जो हम पूरा एक वाइल लूप से कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम ये कोड कॉपी कर लें एंड देन चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर कोड, तुम लोगों को दे देता हूँ और मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। हमारे एलिमेंट हो जाएगा प्ले बटन, प्ले अंडरस्कोर btn इज इक्वल टू वेब ड्राइवर वेट ड्राइवर, और क्या 10 सेकंड के लिए वेट कर रहा है, चलो उसको 20 सेकंड कर लेंगे, और 20 सेकंड के लिए उसका जो मैक्स रेंज होगी 20 सेकंड के बाद वो काम मतलब टाइम आउट एक्सेप्शन दे देगा। और डॉट अनटिल ईसी डॉट प्रेजेंट एलिमेंट लोकेटेड, ये भी सही रहेगा। प्रेजेंस डॉट एलिमेंट लोकेटेड होगा या कोई चीज़ होगी यहाँ पे? बताओ बॉयज, सेम कैसे होगा यार? इसी एक्सपेक्टेड कंडीशन हम ऊपर क्या बोल के आए थे, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड थोड़ी यूज करेंगे हम, कोई और यूज करेंगे ना। प्राइवेट इज इक्वल टू वेब ड्राइवर वेट डॉट अनटिल ईसी डॉट क्लिकेबल भी चेक कर सकते हैं, क्लिकेबल चलें ठीक है। So EC dot presence, oh sorry, element to be clickable। जब तक एलिमेंट क्लिकेबल नहीं है तब तक क्या करो, वेब ड्राइवर वेट। अच्छा, वेब ड्राइवर वेट को ड्राइवर तो दूं, ड्राइवर कॉमा 20 सेकंड के लिए वेट करना, तो 20 सेकंड के बाद टाइम आउट एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, तो EC डॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, जब तक क्लिकेबल नहीं है तब तक काम करो। और कौन सा एलिमेंट क्लिकेबल होना चाहिए? लोकेटर। अब इसको लोकेटर में मुझे एक टपल देना होगा, राइट, और टपल में क्या क्या होगा, बाय डॉट CSS सेलेक्टर, और कॉमा में कौन सा CSS सेलेक्टर होगा तो मैंने अभी हटा दिया, दैट वाज कि div डॉट साउंड अंडरस्कोर हेडर, आई गेस यही था, कंफर्म साउंड कंटेंट div देखेंगे, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब तक इस CSS सेलेक्टर को मतलब ये 20 सेकंड के लिए बार बार चेक करता रहेगा, और 20 सेकंड में ये चीज़ मिल गई तो प्ले बटन, नहीं तो कौन सी एक कंडीशन रेज करेगा, दैट इज टाइम आउट एक्सेप्शन। वो तुम लोगों को रन करके दिखाता हूँ मैं। तो प्ले btn डॉट क्लिक, रन करके देखते हैं। चलो अब दूसरा गाना चला देते हैं। पॉज कर लिया। सो एक्सपेक्टेड कंडीशन समझ आ गई किस तरीके से उसने वेट किया, या क्लिकेबल प्रेजेंस नहीं, क्लिकेबल पे उसने देखा कि जब तक क्लिकेबल नहीं है तब तक वेट करो। ठीक है, सिंटेक्स समझ आ गया, फायदा समझ आया इस चीज़ का, वाई आर वी यूजिंग एक्सपेक्टेड कंडीशंस, ताकि वो चीज़ स्पेसिफिक हो जाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट टाइम डॉट स्लीपिंग वाइल ट्रू में टाइम डॉट स्लीप करें, किसी बंदे को नहीं पता दूसरे बंदे को क्या कर रहा है। नाउ द कोड इज मच मोर डायनामिक एंड मच मोर क्लियर कि क्या करना चाहता है वो। द पावर इज अनलिमिटेड, तुम लोग सिर्फ प्रेजेंस के अलावा भी एलिमेंट डॉट क्लिकेबल पे काम कर सकते हो, एलिमेंट प्रेजेंस पे काम कर सकते हो, एलिमेंट की विजिबिलिटी में काम कर सकते हो। अच्छा, विजिबिलिटी और प्रेजेंस के दो फंक्शन हमने देखे, बताएं विजिबिलिटी और प्रेजेंस में क्या फर्क है? एनी आइडियाज प्रेजेंस और? ठीक है, लोड होने का, विजिबल हो गया, लोड हो गया, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब लाजमी है, हमेशा जरूरी है कि एक चीज लोड होना उसका विजिबिलिटी भी बता देती है?
Presence means it is no visibility is opacity of the object visible already. Is HTML code में present what you want. Yes, Soban is मतलब Soban ने सही बात करी कि visible मतलब हो चाहे presence या नहीं कि वो clickable भी है. आसान लाजमी नहीं है clickable भी हो, selectable भी हो जाता है. तो presence इसकी क्या वो चीज़ HTML कोड में exist करती है. Visible is क्या हमें जो उसकी जो display है is that block और display heading. You guys remember कि कुछ div होते हैं, div click करने के बाद ही दिखते हैं. ठीक है, तो वहां पे तुम लोग प्रेजेंस नहीं यूज कर सकते, वहां पे विजिबिलिटी यूज करोगे. बट विजिबिलिटी तुम लोगों को भी डिपेंड करता है कि इफ यू रियली वांट टू यूज इट फॉर स्क्रैपिंग पर्पसेस, हमेशा नहीं यूज की जाती स्क्रैपिंग के लिए विजिबिलिटी. प्रेजेंस इज इनफ. यस, इंटरैक्टिव वेबसाइट्स में जहाँ पे CSS के थ्रू और jQuery के थ्रू ऑन क्लिक फंक्शंस पे कुछ चीज़ दिखती है, कोई चीज़ विजिबल या हाइडिंग हो जाती है. होवर वाला भी काफ़ी अच्छा है. होवर के फंक्शन में जब होवर करो तो उसके बाद प्रेजेंस मिल जाए और विजिबिलिटी दिख जाती है. प्रेजेंट तब नहीं होती जब सेशन एक्सपायर होता है, बट समथिंग कैन बी विजिबल. ठीक है ऋतिक. सो इफ यू गाइस कैन नोटिस स्टॉप प्रेजेंटिंग एक जो वो है, दिस इज विजिबल. प्रेजेंट तो है ही है, विजिबल भी है. सो व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक कंडीशन जब आपको ये देखना है कि वेदर द एलिमेंट इज विजिबल, तब आप विजिबिलिटी वाला वो एक्सपेक्टेड कंडीशन यूज करेंगे. ठीक है. अच्छा, ये चीज़ नोटिस करिएगा कि हमेशा पॉसिबल नहीं है. ओके, द लाइट इज गॉन. ओके, द UPS kicked in. So yes, automatic इलेक्ट्रिक कर लिया ना. ऑटोमेट देखा कैसे आ गई वापस लाइट. ओके, तो एक्सपेक्टेड कंडीशन सबको क्लियर है, आई होप सो. इसको एग्जिट कर दूं. सबको क्लियर है एक्सपेक्टेड कंडीशंस, आगे बढ़े. ओके, बेहतरीन. अच्छा, एक और चीज दिखा दूं हाथ के हाथ ही कि सपोज करें कि डिव को 10 सेकंड के बाद भी वो चीज़ नहीं मिलती. मैं तुम लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये चीज़ काम कर रही है, ऐसे ही मैं बोल नहीं रहा. तो यहाँ पे div डॉट एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट, कोई तो लाजमी है कि डॉट एलिमेंट का कोई हमारे पास क्लास है ही नहीं इस डिव के अंदर, राइट. तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाएगी. वो एक्सेप्शन दिखा देता हूँ तुम लोगों को ताकि उसको भी हैंडल कर लो तुम लोग. Python Bootcamp, Amir Zaki. That what? अच्छा, गलत स्क्रिप्ट रन करी. I edited the EC script and I ran the normal script. EC script कुछ नहीं छेड़ना. Let's modify this thing. Dot element. मुझे पता है ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास एक्सेप्शन क्या आती है. आमिर ज़की. So, ये 10 सेकंड वेट करेगा. अब चूंकि इसको कुछ मिल नहीं रहा तो इसीलिए प्ले बटन को क्लिक नहीं कर रहा, राइट. अब देखिएगा. ओके, सो 10 सेकंड हो गए और 10 सेकंड के बाद उसको कोई चीज़ मिली नहीं तो स्क्रिप्ट बंद हो गई खुद ब खुद. एंड इट रेज्ड एन एक्सेप्शन, टाइम आउट एक्सेप्शन. तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि तुम लोग एक्सेप्शंस हैंडल ना करो, क्योंकि जब तुम्हारा एक कोड पढ़ता है एंड स्क्रिप्ट स्टॉप्स वर्किंग, इट्स नेवर गुड प्रैक्टिस टू नॉट हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस जो डिफरेंट किस्म की तुम लोगों को आ सकती है. तो यहाँ पे हमें एक टाइम आउट एक्सेप्शन आ रही है एंड वी हैव टू हैंडल इट अकॉर्डिंगली. एक्सेप्ट टाइम आउट एक्सेप्शन और ड्राइवर डॉट क्विट. वहाँ पे भाई जब भी तुम्हारे पास टाइम आउट एक्सेप्शन आए तो उसको ड्राइवर को बंद कर दो, क्योंकि ड्राइवर पीछे खुला होगा. यहाँ पे प्रिंट करो कि रॉन्ग CSS सेलेक्टर एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट. ठीक है, 20 सेकंड उसने वेट किया, 10 सेकंड नहीं किया. 20 सेकंड के बाद भी उसको नहीं मिला तो रॉन्ग CSS सेलेक्टर और ड्राइवर को बंद ही कर दो ना उसके बाद. तो यू गाइस कैन नोटिस कि टाइम आउट एक्सेप्शन यहाँ पे VS कोड क्यों यूज कर रहा हूँ, खुद आ गई, बट यू कैन इम्पोर्ट इट एज वेल. तुम लोगों को इम्पोर्ट करानी पड़ेगी. लेट्स फॉर टेस्टिंग पर्पसेस इसको 5 सेकंड के रन करते हैं एंड देन ट्राई इफ इट वर्क्स और नॉट. सो ऑलवेज ट्राई टू, मेरा लेसन यहाँ पे ये है कि ऑलवेज ट्राई टू हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस क्लियरली कि भाई यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ सकती है. लाइक
वेरी नाइस। तो आपके पास ये एक्सेप्शन आ सकती है एंड यू हैव टू हैंडल इट अकॉर्डिंगली। हमेशा हर लाइन ऑफ कोड नहीं, कुछ ऐसा एक्सेप्शन जहाँ पे कोई इनपुट आउटपुट बाहर से आ रहा है, यूजर से आ रहा है, इट कुड बी समथिंग दैट ब्रेक्स योर कोड, तो वहाँ पे उस एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो यहाँ पे इफ यू गाइस कैन नोटिस कि यहाँ पे ड्राइवर को उसने बंद तो कर दिया, उसके बाद लेकिन प्ले बटन क्लिक पे चला गया। खैर दैट्स एन स्टोरी फॉर अनदर टाइम। यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं कि ताकि स्क्रिप्ट यहाँ पे एग्जिट ही हो जाए ड्राइवर कोड करने के बाद, ठीक है। ये सिलेक्टेड टू यूजर नहीं दे रहा, आई नो सी सिलेक्टेड यूजर नहीं दे रहा, बट समटाइम्स हैपेंस कि भाई तुम लोग पीछे वेबसाइट अपडेट हो गई और तुम्हारा बॉट काम नहीं करेगा ना फिर, राइट। सो व्हाट डू यू डू इन दिस कंडीशन? एक्सेप्शन हैंडल कर लोगे तुम लोग तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि तुम लोगों को पता चलेगा कहाँ पे जाके एरर फट रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल लॉग्स वगैरह, ठीक है। गो अहेड। तो फेसबुक का बॉट बनाया अब, आई थिंक इट्स ऑल गुड नाउ। सेलेनियम वगैरह क्लियर हो गया, एक्सपेक्टेड कंडीशंस भी बता दी तुम लोगों को मैंने। So let's move ahead and create the FB bot. सब हो गया, डन हो गया, एक्सपेक्टेड कंडीशंस भी बता दी तुम लोगों को। चलें फेसबुक बॉट पे आ जाते हैं अब। अच्छा, डिक्शनरी अटैक, यस। तो डिक्शनरी अटैक तुम इस तरीके से बोल रहे हो कि बार बार पासवर्ड ट्राई करें किसी बंदे के। यार डिक्शनरी अटैक का फिर अगेन मसला ये आ जाता है कि इफ यू इनपुट पासवर्ड इनकरेक्ट अगेन एंड अगेन, ऑफ कोर्स सेलेनियम से ऑटोमेट तो कर सकते हो इस प्रोसेस को। रिकैप्चर को, हैक कैप्चर को कैसे हैंडल करोगे जब गूगल वगैरह कैप्चर देता है टू वेरीफाई वेदर यू आर अ पर्सन और नॉट, वेदर यू आर अ रोबोट। जब तुम पासवर्ड 5 या 6 दफा गलत एंटर करते हो तो रिकैप्चर आ जाता है। Kamal has a suggestion. Yes, Kamal. Pi out to GUI for थोड़ा सा noise volume change करो 2 3। Oh, सही। So what Kamal is suggesting कि तुम लोग to verify make the UI thing, make the browser thing कि तुम एक proper user हो। You can use Pi Auto GUI to move your mouse around, ताकि अगर माउस यूजर की कुछ ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि वो रेंडमली क्लिक करता है, if he goes quickly like this, तो ये बॉट नहीं करेगा, राइट। These are different nitpicking behavior you can insert in your scripts to make the fool of the bots they use to verify whether you are a bot or not। तो उनके पास ट्रिक्स होती हैं। स्लो डाउन माउस स्पीड, यस यू कैन स्लो डाउन एज वेल। वेरिएबल रखो, ज़्यादा बेहतर है, तो बार बार चेंज हो। मशीन लर्न ऐप फॉर सॉल्विंग कैप्चा। सामान जब कर लो ना मुझे बताना, ठीक है। ओके चलें, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू एफबी बॉट। अच्छा भाई, थक तो नहीं गई तुम लोग? करना है फेसबुक बॉट पे काम? ओके गुड गुड गुड। नहीं करते हैं? ओके बेहतरीन। भाई आ जाओ सब, कहाँ गए सब? स्पॉन्ड। यस करते हैं, चलें बेहतरीन, लेट्स मूव अहेड। तो हमने एक चीज़ करी थी तुम लोगों को, मैं ये टिप काफ़ी जल्दी दे देता हूँ स्टार्टिंग में। तो हमने काम पीछे क्या करा था, लेट्स क्रिएट अ न्यू नोटबुक पाइथन 3 FB बॉट। FB बॉट का मैंने उसमें लेक्चर नोट्स में कुछ नहीं लिखा, दिस इज जस्ट एक्सक्लूसिव टू यू गाइस जो आज उसमें आए हैं और जो वीडियो देखेंगे होपफुली उनके लिए सिर्फ। तो ड्राइवर इज इक्वल टू पहले फ्रॉम सेलेनियम, इंपोर्ट वेब ड्राइवर फ्रॉम सेलेनियम। अच्छा ये चीज़ें कॉपी कर लेते हैं जो कॉमन इंपोर्ट्स हमें चाहिए होंगे। आई थिंक दीज आर ऑल द इंपोर्ट्स दैट वी विल नीड। टाइम आउट एक्सेप्शन चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा छोड़ दें, इधर रख ही देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये भी चाहिए होगा, गेट पास टू यस चाहिए होगा, बाय चाहिए होगा, ऑप्शंस नहीं चाहिए होगा, ऑप्शन चाहिए होगा एक्चुअली जो हमें वो चीज़ भेजनी थी।
वॉइस भी नहीं चाहिए, स्लीप भी नहीं चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट्स हो गए, ड्राइवर इज इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट https www.facebook.com। तो यहाँ पे एक मसला ये आ जाता है कि फेसबुक ने डिलिबरेटली ये चीज़ काफ़ी मुश्किल करी हुई है, तो एफ पी बॉट से वो काम निकाल लेते हैं, नहीं नॉट दिस थिंग, एफ पी स्क्रिप्ट, और लॉगिन का पूरा फंक्शन ही ऐसे निकाल लेते हैं, विल नीड दिस। ओके, लॉगिन URL, वेरी नाइस। So the password is, ठीक है, पासवर्ड भी हो गया एंड लॉग्ड इन। अब फेसबुक ने डिलिबरेटली ये देखें, because it doesn't follow the community standards. Very nice. I have been blocked. You have 30 days after your request a review, and there are 30 days remaining. Very nice. They have blocked my account because अच्छा ये जो मसले है ना, तुम लोगों को मैं लाइव दिखाता हूँ। This is the first time I'm seeing it. ये वाले मसले फेसबुक करता है। So I just created a account and I used Selenium to log into it first day पे। तो Python bootcamp को चलें, कोई मसला नहीं है। Let's create another account. यस, फेसबुक की एपीआईज हैं, बट एक चीज़ तुम लोगों को याद रखनी होगी कि फेसबुक का बिजनेस ही यही है कि वो यूजर्स की डेटा लेता है एंड इट प्रोड्यूसेस डेटा ऑफ इट, ठीक है। उनकी वो एक पूरा बिजनेस मॉडल है इस चीज़ पे। दिस इज नॉट रियली समथिंग जो आप मतलब फेसबुक ओपन सोर्स करके एपीआईज आपको दे देगा। इट्स नॉट रियली इन देयर, व्हाट डू यू कॉल इट, in their favor or in their benefit to do this, ठीक है। ये वही वाली आई गेस। दूसरी ईमेल एड्रेस चाहिए मुझे, नहीं यार, डोंट टेल मी। Python bootcamp, this thingy, नाइस, हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ईमेल वही वाली है, पुरानी वाली। आई होप माई IP इज नॉट ब्लॉक्ड, नो वरीज। ओके, करते हैं इसका कुछ। ओके, split parents. नहीं, forgotten password नहीं, create new account, Python bootcamp, custom day bootcamp। ओके, नाइस। मेरे पास ईमेल आनी चाहिए। Mark Zuckerberg joined. I was zucked, guys. Yes, आ गया, very nice. अच्छा, तुम लोगों के पास टाइम है ना? This unfortunate delay was not expected. Very nice. Your account has been disabled.
That's quite unfortunate. हाँ मार्क को बुलाते हैं यार, बोलते हैं क्या सीन कर लिया ये. Oh God. Why? आई गेस फेसबुक चेक कर रहा है कि मेरी जो ईमेल एड्रेस है दैट्स अ टेम्पररी ईमेल एड्रेस, है ना? आई होप दैट्स नॉट द रीजन. इज इट? It's not. It said it is, I think. Should we use our primary Facebook account for this then? करना चाहिए? Let's try. Chrome is not reachable, of course. That's not a good idea. नहीं guys, आज करेंगे. Don't worry about it. Okay, that's Rain. I am here. No, not Zug. चलें. आज बिल्ड करेंगे बॉट, यानी कोई मसला नहीं है. तो हमारे पास अब मुझे बताएं, वी हैव 2 आइडियाज फॉर द बॉट टुडे. नंबर 1 कि हमें कुछ ना कुछ पोस्ट करने हैं, या नंबर 2 किसी न किसी पोस्ट पे जाके लाइक एंड कमेंट करना. आई प्रेफर द सेकंड मेथड. वो ज़्यादा मुश्किल है, उसमें ज़्यादा चीज़ें देखनी होंगी. तो व्हाट डू गाइस से, किसको देखें आज? कमेंट्स, स्पैम, सेकंड वन. ठीक है, आईना भी बोलते हैं सेकंड वन, सुभान भी बोलते हैं सेकंड वन. चलें, लाइक एंड कमेंट. चलें, लेट्स वर्क ऑन कमेंट्स फर्स्ट, या लाइक्स पे पहले काम करते हैं. डजंट मैटर, इनपुट लेना है किसी न किसी उसका. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड अ रियली गुड post just like this one. This is a really good post by someone I know. ठीक है, इनकी पोस्ट का लिंक कॉपी कर लेते हैं. post URL is equal to this thing, private.get this thing. private post पे चला गया. Now क्योंकि मेरे पास पहले ही liked है, तो I guess just let's work on liking this thing. तो Control Shift I. like का बटन कहाँ पे है? So you guys notice how the UI is getting mugged up and everything. ठीक है, और new UI Facebook की काफ़ी difficult भी है. So there is an interesting tip that I'm going to show you guys. ठीक है, the trick is you do not use www.facebook.com, you use mobile Facebook. Mobile Facebook किस तरीके से use होगा? Instead of typing in m.facebook, you use so www.facebook, you use m.facebook. So driver.get this thing, and this is much more easier to scrap and much more easier to work with. ठीक है, someone spoiled it. Yes. Kumail, I think Kumail ने किया था ये कल. But yes, so मुझे सिर्फ like का बटन ढूंढना है. This is a like का बटन. कहाँ गया? Okay. तो क्या मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज दिख रही है which is easy to query this like button next time? Do you guys see anything? Any attribute जो लगता है तुम लोगों के हमेशा constant रहेगा? क्योंकि ये चीज जो है 15K something, these are dynamically defined divs. इनको तभी यूज करो जब तुम्हारे पास वर्स्ट केस सिनेरियोस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, बट
all times try to use something that's constant. id, okay. What kind of id does this have? id, it doesn't have a normal id but it does have a data auto id. तो क्या इसको हम कंफर्म करने के लिए क्या ये सही हमारे पास पाथ है, तो हम ऑटो id 7 सॉरी नहीं, डेटा ऑटो id बराबर है ऑटो id 7 के। तो मुझे पता चलता है यस अपेरेंटली डेटा ऑटो id 7 हमेशा यही रहता है, एंड इट्स इनक्लोज्ड इन डेटा सिजिल UFI इनलाइन एक्शंस। तो ये बेहतर है कि इससे जाके पहले डिव में लेके जाएं या डेटा ऑटो आईडी से यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। एंड द फर्स्ट आई थिंक बेहतर ये होगा कि डेटा सिजिल वाली ये वाली चीज़ ना ज़्यादा कोहेरेंट है, आई थिंक ये कांस्टेंट रहेगी। डेटा ऑटो आईडी से लग रहा है कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, तो इट्स नॉट रियली गुड टू यूज दैट थिंग। तो ये काम करते हैं कि डेटा सिजिल वाला डिव यूज करते हैं, उसके पहले जो अंदर डिव है उसको क्लिक करेंगे हम, राइट। ओ एम आई ब्लाइंड और समथिंग, इसके आईडी भी है। ओह इसकी आईडी भी है, नाइस। U0U or something, I don't know what it's U। तो फिर इसकी भी आईडी होनी चाहिए, राइट। कमेंट की आईडी है नहीं, कमेंट की आईडी नहीं है आई गेस, बट या यू कैन यूज ईदर दिस आईडी और यू कैन यूज UFI इनलाइन एक्शंस का पहला डिव। तो लेट्स डू UFI एक्शंस का पहला डिव। हाँ ये भी डायनेमिक नहीं लग रही, यप that's why I am trying to use the driver.getElement like btn is equal to driver.getElement, नहीं find element not get element, find element by CSS selector। एक div है जिसका sigil क्या था, data sigil is बराबर to UFI inline actions, ठीक है। इसको ढूंढो like btn का get attribute outer HTML, we are in the right direction। और उसके अंदर पहला div और उस div के अंदर हमारा एक एंकर टैग या div is enough, ठीक है। तो लाइक बटन को अगर मैं क्लिक करूं तो होपफुली क्लिक करना चाहिए। try to open it side by side, इसको बंद करते हैं। नाइस, आई अनलाइक द पोस्ट, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, लाइक अनलाइक, लवली। ओके नाइस। हाउ टू रिपोर्ट अ पोस्ट। नहीं भाई अनस खुद करो, मैं क्यों रिपोर्ट करवाऊंगा तुम्हें। नेक्स्ट लेवल पे, ओके नाइस। चलें तो कमेंट करें आप। गाइस यू आर रेडी फॉर द कमेंटिंग पार्ट? कोई बोर तो नहीं हो रहा, किसी को जाना तो नहीं है? एक लग रहा है हिम्मत है तो। Okay, let's go and do the comment part. The comment is really interesting. Let's go into the CSS selector for comments, or oh nice, composer input div class। थोड़ा ऊपर जाते हैं ताकि ये वाली चीज़ पूरी आ जाए। That's preferred way to do it। कि मेरे पास एक डेटा सिजिल एम कंपोजर, मैसेज कंपोजर आई थिंक यही है, और उसके अंदर हमें एक फॉर्म चाहिए। फॉर्म इज ऑफ टाइप समथिंग समथिंग, कमेंट फॉर्म डेटा। अच्छा ये देखें, डेटा ऑटो आईडी हमारे पास रिपीट हो गई। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट प्रेफरिंग टू यूज डेटा ऑटो आईडी। समझ आया व्हाई आई डिड नॉट यूज डेटा ऑटो आईडी नाउ। पैसे वाले पोस्ट पे कमेंट करूं?
चले ठीक है, पहले इस पे करते हैं, देन वील डिफाइन अ फंक्शन, फिर उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी कर लेंगे, ठीक है। लेट्स डू developer student clubs first, the thing I am representing here. Okay, text area, mentions से भी ऊपर, U010 this thing m composer। तो एक div है m composer के नाम से, m composer के अंदर मुझे एक div मिल जाएगा text area, एक text area मिल जाएगा that has the composer input id। let's try to do that। comment box is equal to driver dot find element by css selector, div जिसकी आईडी थी कंपोजर इनपुट, आई एम सॉरी फॉरगॉट। हाँ कंपोजर नहीं, इसका डेटा सिजिल था m composer डॉट डेटा सिजिल was m composer, और इसके अंदर एक आपके पास टेक्स्ट एरिया है, और टेक्स्ट एरिया की आईडी इज कंपोजर इनपुट। लेट्स ट्राई टू सी इफ वी फाउंड समथिंग सिमिलर। comment box dot get attribute outer html, yep we got it। तो अब क्या करेंगे इनपुट देने के लिए, इसको कुछ भी गेट की, क्या गेट की, क्या सेंड की, नॉट गेट की, आसान भूल गए क्या ओके dot send keys hello from python bootcamp week 3 day 3 live, ठीक है आ गया hello from python bootcamp week 3 day 3 live। then we post, इंस्पेक्ट करके इसको भी ढूंढते हैं, this is a button that has value post class this area label this data set touchable composer submit निकालते हैं, ठीक है। एक चीज नोटिस करिएगा, आई थिंक ये टचेबल उसके बाद हो गया ना, डिसेबल्ड फॉर नाउ देन इट बिकम्स ट्रू, तो ये चीज देख लीजिएगा, डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू है, उसके बाद यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो यस लेट्स सी हाउ यू गाइस वर्क अराउंड दिस, अभी तो नहीं करूँगा फॉर द टाइमिंग। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये मिल गया, मुझे अब एक बटन ढूंढना है दैट इज आल्सो शुड बी इन दिस थिंग, इस पूरे उसमें ही होगा, क्योंकि हमने तो m composer के अंदर गए थे। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द बटन एज वेल। पोस्ट बटन is equal to driver dot find element by css selector, this thing, उसके बाद एक बटन है जिसका डेटा सिजिल is touchable composer thingy, बटन मिल गया, इनका गेट एट्रीब्यूट करके टेस्ट कर लेते हैं कि सही भी है कि नहीं है। इट इज एक्चुअली करेक्ट, पोस्ट बटन डॉट क्लिक। Congratulations guys, we have just posted a comment using FBbot। मजा आया? Oh, send keys में enter भेज दो। Let's try if that works। डॉट क्लिक नहीं करेंगे पहले। सुबह इट्स नॉट नेसेसरी टू डॉट क्लिक, वो मैंने तुम लोगों को ऐसे बताया था कि इट्स समटाइम रिक्वायर्ड कि टू फॉर द एलिमेंट टू बी इन फोकस, समटाइम्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड। पोस्ट बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट कमेंट डॉट सेंड कीज, देखो that's why I did not give a new line, क्योंकि comments are not interposted। फिर क्या बोल रहे हो तुम यार? then keys में enter भेजूं, there was an enter, keys dot enter करूं? नहीं, keys dot enter भी काम नहीं करेगा।
from selenium.common.keys import keys, नहीं webdriver.common, okay, webdriver common आ गया, and this and keys dot enter, यही बोल रहे हो ना, ये करूँ ना मैं, राइट? कुमैल ने बोल दिया कि मोबाइल वर्जन की वजह से इशू हो रहा है, वेब पे एंटर पे कमेंट हो जाता है, मोबाइल वर्जन में नहीं होता। तो अच्छा, गुड ओके, थिंग, अच्छी हाँ, चीज गुड थिंग है, अच्छी चीज बता दी, हाथ के हाथ ही। Still does not work. Key dot enter is enter. Okay. So yes guys, understood. तो अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूँ वर्क फॉर फेसबुक, नहीं आए ना, इसका मसला ये है कि एम डॉट फेसबुक के लिए मैंने एम डॉट फेसबुक इसलिए यूज़ किया कि वो काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है, जैसे कि क्लास वगैरह के नाम वगैरह होते हैं, बट फॉर द सेम पोस्ट facebook.com itself proves to be a pain in the arse. अब ये देखें, नॉर्मली जो क्लासेस वगैरह हैं, यू कैन नॉट सी एनी गुड क्लासेस, या यहाँ पे कमेंट पे ही आ जाए। अब देखें, देयर इज नो डेटा सीरीज और एनीथिंग, काफ़ी बेकार से क्लासेस हैं, मुझे बताएं। दिस इज डेफिनेटली 100% डायनेमिकली जनरेटेड, तो स्क्रैपिंग तो दूर की बात है, यहाँ पर सारे इनक्रिप्टेड क्लासेस हैं। So m.facebook tip is something you will only get from this bootcamp. fb.com करो, नॉर्मल फेसबुक आ जाता है, नॉट m.facebook. अंडरस्टूड? m.facebook का फायदा समझ आया? कमेंट समझ आई? यार m.fb.com यूज कर सकते हो तुम, हमें लाजमी m डॉट करना होगा, www डॉट नहीं करना होगा। m.facebook.com भी नहीं एग्जिस्ट करता, तो m.fb.com एग्जिस्ट नहीं करता, तो m.facebook यूज करना पड़ेगा तुम लोगों को। इंस्टा से पिक्चर्स डाउनलोड करूंगा, ठीक है भाई, नाइस गोल्स। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस यस यस, कमेंट का क्वेश्चन है, जैसे क्लिक है, very nice, very nice. Is there a right click? Yes, there is a right click. So let's go back to lecture notes, day 2, और day 2 में मैंने mention किया था in the notes, look into action chains, और action chains क्या करते हैं? You can send in a series of inputs, you can do drag and drop, and you can do key up key down. अब key up key down में you can send right clicks as well. तो action chains, right click, Selenium. Context click, ठीक है? तो एक्शन चेन्स काफ़ी अच्छी वो है, क्लास है विद इन द लाइब्रेरी, और इफ आई वुड बी रियली glad if you guys could look into it for the future projects वगैरह। ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो गया आपका, क्लिक एंड देन समथिंग टू समथिंग, सब कुछ हो जाएगा उसमें से। अली रज़ा, तुम लोग यही यूज़ कर सकते हो कि नॉर्मली facebook.com को ट्राई करो, बट वही मसला है कि इफ़ इट्स नॉट स्क्रैपेबल, बार बार क्लासेस के नाम चेंज होंगे तो तुम्हारी स्क्रिप्ट वैसे भी ऑब्सोलीट होने वाली है, राइट? वैसे ही ऑब्सोलीट हो जाएगी, एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेंज m.facebook फॉर अ लॉन्ग वाइल, क्योंकि m.facebook इज aimed toward guys और toward people who are using smartphones जो अभी तक एंड्रॉयड एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करती, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो फेसबुक का है वो सपोर्ट नहीं करती। So I know some guys personally जो m.facebook यूज करते हैं, and I don't think they are going to give a long overhaul to it, क्योंकि वो PHP पे बनी हुई है, and the current facebook.com is built on proper React, इसीलिए it's really a pain in the ass to scrap it. तो तुम लोगों का असाइनमेंट समझा दूं सिंस एंड ऑफ द वीक, मजा आया आज?
How about you guys build a Facebook bot that does something similar? Chale. Give me 2 minutes. Let me confirm from my team whether the thing is ready or not. जो मुझे करनी है. What is self-access attack and how attackers do it by using other browser consoles? बेहतरीन. Cross-site scripting की बात कर रहे हो अली रज़ा, right? If I am correct. So XSS attack is cross-site scripting. आपके पास sometimes जो input आता है fields में it's not what do you call it, cleaned. ठीक है, उसको clean करना होता है. Sometimes SQL injection वगैरह use करके other people can inject scripts in your SQL database, और वो जो जब भी वो execute होती हैं line of code और the fields, वो आपकी जो script होती है आपने input में डाली है वो execute हो जाती है. Sometimes this happens कि same as okay ठीक है, कोई मसला नहीं है. So the team, yes, just warning on my browser. यार हाँ, सेल्फ एक्सेस अटैक में ये होता है कि आपको जो कंसोल बताता है, ब्राउजर आपको बताता है that things you're trying to do. You're alone in the office, the lights are flickering. I got a bad feeling about this. That's why यार अब जो होना है होगा. I'm not leaving the office tonight. Okay. Yes, अली रज़ा, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के साथ साथ आई वुड सजेस्ट तुम क्रॉस साइट रेफरेंस रिसोर्स क्रॉस साइट रिसोर्स फॉर्जरी भी देख लो, जो भावल ने हल्का सा एक्सप्लेन किया था इन हिज सेशन. CSRF token, this is something used to verify whether the access is being done by a browser or not, और XSS attack को overcome करने के लिए people use backend libraries like Django और Node, जिसमें ये चीज़ें खुद बहुत built in आती हैं कि अगर input field में कोई ऐसी चीज़ आ रही है that is supposed to be cleaned out, वो खुद ब खुद कर देती है. जैसे डॉट स्ट्रिप का फंक्शन होता है हमारे पास स्ट्रिंग में, तो बैकएंड अच्छे बैकएंड यूआईज या अच्छे बैकएंड लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स में ये चीज़ खुद ब खुद बिल्ट इन आती है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को अवॉइड कर देती है. ओके, मूविंग बैक टू द असाइनमेंट गाइस. ठीक है, अब बात आती है कि हमारी एक पोस्ट आएगी जो अभी नहीं है. सो वाइल आई टॉट यू गाइस हाउ टू पोस्ट, आई टॉट यू गाइस हाउ टू लाइक. ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने तुम लोगों को सिखा दी. तो आज का जो असाइनमेंट है दिस इज 2 पार्ट्स. पार्ट नंबर 1 आपका क्या होगा, मैं आप लोगों को राइट अप अभी मैंने लिखा नहीं है, राइट अप दे दूंगा बाय टुनाइट, बाय टुमारो मैं दे दूंगा तुम लोगों को असाइनमेंट, और इसकी डेडलाइन इज मंडे कर लेते हैं. ठीक है, मतलब नहीं, नेक्स्ट मंडे. कॉल कब रखें इसकी, बिफोर द नेक्स्ट सेशंस, क्योंकि हमारे Tarun, this is the last assignment. I think next week के assignment तो नहीं है. दे दो मंडे तक. स्टिल नॉट डिसाइडेड वैसे, तो मंडे तक के दे दो, फिर देख लेंगे. चलें ठीक है. अच्छा, तो considering your guys' performance, some of you guys are not able to do the assignments on time or do all the assignments. ठीक है, तो since this is just स्टूडेंट बूट कैंप, मैं भी स्टूडेंट हो, तुम लोग भी स्टूडेंट्स हो, आई होप all of you are, and if you even if you are not, तुम लोगों की of course जॉब वगैरह होगी and you have other things to worry about as well. तो आई वुड स्टिल प्रेफर कि तुम लोग अपने जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं टाइम पे कर लो. अपने जो भी असाइनमेंट्स हैं दिल लगा के टाइम पे करोगे तो देयर विल बी एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑफ अस, नॉट टू ऑफ अस, बिटवीन द टू एंटिटीज वी आर. ठीक है, तो यस, प्रेफर्ड यही होगा कि तुम लोग असाइनमेंट जल्दी जल्दी कर लो ताकि क्वेश्चंस वगैरह जैसे आते हैं प्रोड्यूस होते हैं तो उसी वक्त पूछ लें. खैर, असाइनमेंट का पार्ट 1 क्या है और असाइनमेंट का पार्ट 2 क्या है. पार्ट 2 इज ऑप्शनल बट एक्स्ट्रा मार्क्स अगर कर लो तो. एंड अगर तुम लोगों ने, दिस इज फॉर दोज जिन्होंने प्रीवियस असाइनमेंट सबमिट नहीं किए टाइम पे. ठीक है, तो प्रीवियस असाइनमेंट अगर टाइम पे तुम लोगों ने सबमिट नहीं किए, you can gain extra marks using the second part of this assignment. First assignment तो first part is तो लाजमी. तो first part क्या है कि you'll build a Facebook bot
तो क्या करेगा, यूजिंग योर मेन अकाउंट, ठीक है, मेन अकाउंट का कोई मसला नहीं होता है, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे टेम्पररी ईमेल का मसला जो मैंने नोटिस किया था, टेम्पररी ईमेल की वजह से ये ब्लॉक हो रहा है मेरा अकाउंट। योर मेन अकाउंट विल नॉट गेट disabled or anything, and there's nothing you have to worry about. You guys have seen me doing 500 600 comments वगैरह। रुके मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करके तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ आती आती। राइट, so you guys remember the trend कि यार do this much amount of comments on my post, मैं ये काम कर लूंगा फिर ये काम कर लूंगा, ये ट्रेंड आया था बीच में, आई थिंक अभी भी वैलिड है। कैसे रिस्पॉन्ड, मर गए सब? यस, कुमार जिंदा है, बेहतरीन। नॉट अवेलेबल, ओके ओके ठीक है, मैं दिखाता हूँ ना, मैं दिखाता हूँ। यस, कि प्राइवेसी होगी। ठीक है, आसिम की मेरे पास प्राइवेसी क्या है, ठीक है। सो द गाय पोस्टेड कि भाई 15 के कमेंट्स आए एंड आई विल बॉल्ड माय हेयर, ऑफ कोर्स रॉन्ग इंग्लिश, डजंट मैटर। ओके, अब इस पोस्ट पे व्हाइल सम पीपल यूज्ड कमेंट देमसेल्फ, जैसे आमना हमारे पास हमारे मौजूद है यहाँ पे, उन्होंने खुद पोस्ट किए थे, कमेंट्स किए थे, बट वी बीइंग द डेवलपर्स वी आर, होपफुली मिल जाए। तो यस, 11,000 कमेंट्स मिल गए थे, लेकिन उसके बाद एक चीज पता चली थी, दैट्स व्हाई वी स्टॉप्ड, ठीक है। और ऐसा बड़ा प्रैंक यानी कि किसी ने भी नहीं किया होगा हमारे साथ, इतना बड़ा प्रैंक। होप मिल जाए कि आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड माय स्क्रिप्ट, जब मुझे पता चला था। वैसे अभी भी कर सकते हैं और फिर आसिम को वापस बोलेंगे, आसिम 15,000 अभी हो गए। तो ठीक है, तो जब तक मिल जाए, कर रहे थे ना, नहीं कमेल नो, मेरे पास तो नहीं हो रहा था। खैर 15 के क्यों नहीं हुआ इसका जवाब देता हूँ तुम लोगों को पहले। तो माई बॉट डिड अराउंड 1000 कमेंट्स और समथिंग, और इसके बाद मुझे समहाउ थ्रू द ग्रेप वाइन ये पता चलता है कि आसिम अहमद ने ये पोस्ट करने से पहले ही द गाय वेंट बॉल्ड, ठीक है, खुद ब खुद कटवा लिए थे बाल अपने। दिस वाज जस्ट अ प्रैंक कि 15,000 लोग कर लेते और उसके बाद दिखाता कि मैं टकला हुआ हूँ, बट ही वाज उसका प्री प्लान था पूरा ये। इट वाज अ नाइस प्रैंक ऑनेस्ट, बट मेरी कोई मेहनत नहीं गई, अनलेस वाला दिखाओ यार। अजीब फारिक, तुम लोग कमेंट्स भी कर रहे थे इस लोग में, बॉट चला दो। नो अनस, नॉट यू, हमारा एक और दोस्त है अनस, आई थिंक उसकी बात हो रही है। होपफुली मिल जाए। क्या इतना जल्दी तुम्हें रुक नहीं गया था बाबा? उसके बाद कुछ लोग लगे हुए थे ना, इसलिए शायद ऊपर होगा। ओके, सब डीएससी के हुए। यस यार अनस, डीएससी है, डीएससी के आप इवेंट में आए हुए हो, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जस्ट प्लेइंग शैरेट्स कर लेते हैं जी। ओह गॉड, नहीं मिलेगा इस तरीके से आई गेस। आई थिंक ऊपर जाके मोस्ट रेलेवेंट करके देखो। ओह हाँ, ये कर सकते हैं। इज देयर अ वे टू, नहीं, लेट्स ट्राई m डॉट। नहीं, पोस्ट को ओपन करो, पहले क्लिक करो। ओके, आई थिंक उसके बाद आता है मोस्ट रेलेवेंट। नहीं, हाँ ओपन हो गया। इसने तो वही खोल दी, मेन पोस्ट खोल दी। आसिम की पोस्ट नहीं है, मेन पोस्ट है, देखो। हाँ ओके, यप नाउ यू कैन डू दैट। एक काम करते हैं, m डॉट फेसबुक करके देखते हैं, होपफुली उससे खुल जाएगा। बोल रहा हूँ तुम लोगों को। ओके या दिस इज मच फास्टर। सीधा फवायद गाइस, कितना जल्दी जल्दी खोल रहे हैं। अच्छा गाइस, एक डिस्प्यूट सेटल करें, मुझे फेसबुक की न्यू यूआई अच्छी नहीं लगती। व्हाट डू यू गाइस से? लाइक इट इज वेरी ब्लोटेड यार, बहुत लोड होती है। इवन दो आपका नेट अच्छा हो फिर भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। आई लव इट तो।
That's why you shifted to m.facebook. Yes, we love जो it. बात है UI sucks, मैसेजेस अजीब से हो गए, स्लो बट गुड। चलो ठीक है, आई विल डिफाइन मुझे क्यों पसंद आती है। यू गाइस गो अहेड एंड रोस्ट इट फॉर नाउ, तब तक ढूंढता हूँ आपकी कमेंट्स। 2,000 years later. हाँ, नहीं मिलेगा। ओके, चलें छोड़ दें फिर बस। डिसअपॉइंटिंग, very disappointing. Okay, I'll explain to you the assignment. तो assignment ये होगा कि similar to this post, not similar to this post, we'll propose something really appropriate and really good. And what we want you guys to do is to create two things. Number one, एक bot या एक ही bot में आप दोनों एक ही script में दोनों features डाल दें. Number one will be you guys will be sharing the post. The post will be given a post link. You will one like the post. Number two, share the post. Number three, add in the caption. This post was generated using a bot, which I learned from Python Bootcamp 2020 hosted by BSc at BSU. Looks good enough? हो जाएगा तुम लोगों से। लाइक करना है, शेयर करना है, एंड यू हैव टू डू दिस थिंग। प्रमोशन नहीं है, देखें आप, तुम लोग अपनी प्रमोशन भी यहाँ पे कर रहे हो। दिस इज समथिंग यू आर डूइंग विथ योर ऑन, वो जो भी तुम लोगों ने सीखा है। देखें, आई कवर द लाइक द पोस्ट, ठीक है। अब शेयर द पोस्ट विल बी अप टू यू गाइस, लेकिन द प्रोग्राम, द स्क्रिप्ट शुड बी जनरल इनफ कि उसको मैं कोई भी लिंक दूं और वो ये तीनों के तीनों काम कर ले। ऑफ कोर्स दिस पार्ट कैन बी ऑल्सो जनरलाइज्ड कि कैप्शन भी यूजर से ले, ओके। टैग नहीं कर सकेंगे, लेकिन ठीक है, ऐसा नो इश्यूज, टैग ना करें। यू कैन यूज हैशटैग्स, राइट। हैशटैग ऐड कर दें, वो तुम लोगों में फायदा हो जाएगा। हैशटैग BSc DSU, you can add in Python, you can add in automation, you can add in bot, you can add in FB bot, ठीक है। इस तरीके से अगर आप हैशटैग डालते हैं तो ये आपकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी आती है इस चीज़ पे। तो कोई बंदा हैशटैग सर्च करता है तो यू विल कम अप ऑन टॉप। और कैन यू रिपीट, नेट चला गया अब असाइनमेंट। ठीक है, चलें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। सो असाइनमेंट के दो पार्ट्स हैं। नंबर वन, गिवन अ पोस्ट लिंक, आपका जो सेलेनियम का बॉट होगा वो क्या करेगा, नंबर वन जो पोस्ट की लिंक है वो लाइक करेगा, नंबर टू उसको शेयर करेगा, नंबर थ्री ये कैप्शन डाल देगा कि दिस पोस्ट वाज जनरेटेड यूजिंग अ बॉट व्हिच आई लर्नड फ्रॉम पाइथन बूटकैम्प 2020 हॉस्टेड बाय TCDSU। अब इस चीज़ की असाइनमेंट तुम लोग बोलोगे यार ये खुद कर लें, मतलब मैन्युअली लाइक करके शेयर कर दें, ठीक है। डोंट बी स्मार्टेस्ट, आई विल आस्क फॉर अ वीडियो इन विच द स्क्रिप्ट वर्क्स, ठीक है। तो स्क्रिप्ट जो काम कर रही होगी उसकी एक वीडियो आप सबमिट करेंगे अपनी जो पोस्ट है उसकी कमेंट में। अब ये चीज़ कमेंट का पार्ट आप ये भी ऑटोमेट कर लेते हैं तो बेहतरीन हो जाता है। अगर कमेंट का पार्ट ऑटोमेट ना भी करते हैं, नो इश्यूज, जस्ट मैन्युअली अपनी जो पोस्ट आपने शेयर करी है, शेयर करने के बाद कमेंट में ये वीडियो डाल दें कि वो कैसे तुम स्क्रिप्ट रन कर रहे हो एंड द बॉट इज डूइंग द स्टफ इटसेल्फ। असाइनमेंट का पार्ट वन समझ आ गया सबको? स्क्रिप्ट तो शेयर करोगे ना, वो तो करोगे ही करोगे क्लास में। Yes, you can use Windows G to record your video. स्क्रिप्ट नहीं शेयर करेंगे, यस वो करेंगे कमेंट में। आई ना, यस कमेंट में अपनी एक वीडियो रखेंगे विच आई गो एंड चेक माई सेल्फ। तो हमारी जो प्रोसेसिंग होगी दो किस्म की होगी, मैं तुम लोगों का कोड चेक करूंगा एंड आई विल असाइन समवन एल्स फ्रॉम द कोर टीम एज वेल, जो जाके शेयर्स में वेरीफाई करेगा कि तुम लोगों ने शेयर तरीके से सही किया है और पीछे क्या कैप्शन सही है एंड द पोस्ट में जो कमेंट में वो चीज़ एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, ठीक है। यू विल बी शेयरिंग आवर पोस्ट। इस चीज़ से, सिंस वी आर नॉट आस्किंग यू फॉर एनीथिंग अदर देन योर कंप्लीट डेडिकेशन एंड योर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लर्निंग समथिंग, दिस इज समथिंग यू कैन डू फॉर अस, राइट?
शेयर पब्लिक पे करना है, प्राइवेसी सेटिंग्स मैन्युअली करनी है। वेरी गुड क्वेश्चन आइना। अगर तुम लोग ये खुद ही कर लेते हो कि प्राइवेसी सेटिंग भी उसकी पब्लिक कर लें स्क्रिप्ट के थ्रू, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर यू गाइस। ठीक है, अगर नहीं भी करते नो इश्यूज, बेस मार्क्स फुल मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर स्टफ लाइक दिस। जैसे अब नीचे अतीक इज कमिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स अकाउंट इब्राहिम यजदानी। ठीक है, तो उसने जो नीचे पोस्ट किया है द टैग्स गूगल डेवलपर्स डीएससी पाकिस्तान, आई गारंटी यू गाइस तुम लोग जब ये पोस्ट करोगे ना यू विल रीच ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर दिस हैशटैग्स। ठीक है, काफी people like Saad Ahmed over there in Google DSC heads, not the leads but the heads, ये चीज hashtags यूज करते हैं। तो imagine तुम लोगों की recognition कितनी बढ़ जाएगी। Unless I am assigning marks, there is a हमने जो रफली डिसाइड किया है वो 3 किस्म के हमने वो काइंड ऑफ क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट्स असाइन किए हैं। तो वी विल बी डिवाइडिंग द असाइनमेंट्स अकॉर्डिंग इन द कैटेगरी के जो तुम लोगों की परफॉर्मेंस है। या क्लास पार्टिसिपेशन के ऑफ कोर्स हैं। अटेंडेंस के मैंने रखूंगा कि जिनकी अटेंडेंस स्टेलर रही है ना, कि फर्स्ट दिन से वो आए हैं, तो उनको असाइनमेंट में अगर असाइनमेंट्स उन्होंने सही नहीं किए या उसमें कोई मसला हुआ है तो आई विल ट्राई टू कवर अप देयर मार्क्स इन द पार्टिसिपेशन वगैरह। ठीक है, असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया किया तो क्या फर्क तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, हम दिस इज फॉर यू ना। अब मैं सेकंड असाइनमेंट पे आता हूँ ना, सेकंड असाइनमेंट के सेकंड पार्ट पे आता हूँ। व्हेन विल यू अपलोड लेक्चर नोट्स? लेक्चर नोट्स आज के आज अपलोड कर दूंगा सारे में, वीडियोस कल तक या परसों तक हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट आइना। तुम लोग अगर सेकंड असाइनमेंट जो ये वाला असाइनमेंट का सेकंड पार्ट ये कर लेते हो तो दैट्स गुड इजी वे टू गेट मार्क्स। द ऑप्शनल और द सेकंड एक्स्ट्रा मार्क्स वाला क्वेश्चन ये होगा कि बॉट विल आल्सो कमेंट रिपीटेडली 50 टाइम्स एट लीस्ट। ठीक है, अब इस कमेंट में क्या होगा कि तुम लोगों व्हाट यू गाइस लर्नड, paragraph broken into lines, what you guys learned so far, what you guys wished we did, how you are going to use this experience, basically a review। ठीक है, तो एक पैराग्राफ लिखेंगे आप लोग जो एक रिव्यू होगा काइंड ऑफ, उसको स्प्लिट करेंगे लाइंस में, और वो लाइंस आप एटलीस्ट 50 या समथिंग लाइंस कुछ होंगी होपफुली, आई गेस इतना तो लिख सकते हैं आप, वो कमेंट कर देंगे पोस्ट के नीचे। ठीक है, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा मार्क्स। कमेंट मैंने डिस्कस कर लिया कैसे कमेंट करते हैं एंड हाउ। अब तुम लोग इसको वेट कंडीशन वाइल लूप में वेट कंडीशंस किस तरीके से हैंडल करते हो कि पिछली कमेंट पोस्ट हो जाए उसके बाद ही नेक्स्ट कमेंट पोस्ट करनी है। दिस इज यू कैन यूज एक्सपेक्टेड कंडीशंस फॉर दैट। इतनी मैं टिप दे देता हूँ। और जो जो कुछ सीखने को मिला यू कैन डू इट इन द पोस्ट एज वेल। पोस्ट में आज तक बना लूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, फिर आई विल पोस्ट इट एंड नोटिफाई यू गाइस अकॉर्डिंगली। असाइनमेंट सही समझ आ गया, स्टार्ट वर्किंग ऑन द असाइनमेंट एंड आई विल पोस्ट द थिंग यू हैव टू शेयर एंड यू हैव टू डू। अच्छा, also my name is Anna from Analog. Oh, Anna Therin. Okay. Sorry, मुझे पता नहीं था। That's an interesting thing. Okay. So understood. Assignment समझ आ गया, मजा आया आज। Any questions from today? Expected conditions, assignment के बारे में, anything literally. असम मैं ट्राई करूँगा नहीं काटूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने असाइनमेंट सबमिट भी नहीं किया, सो यस दे वॉन्ट बी गेटिंग एनी सर्टिफिकेट्स और एनीथिंग, लेकिन यस सबमिट कर दें। मैंने बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबमिट कर दें। ऑफ कोर्स यू वांट बी जज्ड ऑन द सिमिलर लेवल उन लोगों के जो लोग सबमिट कर रहे हैं असाइनमेंट्स टाइम पे अपने, बट यस यू विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट अगर तुम लोगों के असाइनमेंट में कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है, आई केयर अबाउट क्वालिटी, आई डोंट केयर अबाउट द टाइम, एटलीस्ट ऑन दिस लेवल टाइम पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन क्वालिटी ऑफ कोड इज़ रियली गुड, if the quality of your programming is really good, lecture notes किस तरीके से आप readmes जो अपने बना रहे हैं किस तरीके से बना रहे हैं. Yes, someone is saying something. अनस देख लूँगा मैं, but यार this is not really something I can give you full marks for. ये प्रोजेक्ट एक असाइनमेंट का है, ओ मतलब असाइनमेंट एक अपने बूट कैम्प का है, एंड यू आर सबमिटिंग समथिंग एल्स जो आपने खुद किया है. आई नो दैट्स रेस्पेक्टेबल, लेकिन असाइनमेंट नहीं है वो, सो फुल मार्क्स तो नहीं होंगे उस चीज़ के, बट आई विल गिव यू कंसिडरेबल मार्क्स, डोंट वरी अबाउट इट. और आई गेस हमारी वो पोस्ट भी डन हो गई है ऑलमोस्ट, एंड विल बी पोस्टेड सून. एंड दिस इज नॉट समथिंग कि सेल्फ प्रमोशन के लिए हम कर रहे हैं, राइट? दिस इज समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ. एक बॉट बनाया एंड द बॉट इज केपेबल ऑफ शेयरिंग अ पोस्ट ऑन फेसबुक फॉर यू. ठीक है, सर्टिफिकेट में मार्क्स लिखे हुए होंगे, सभी नो मार्क्स नहीं लिखे होंगे, पर सर्टिफिकेट्स में जितना मैंने सोचा है अभी तक, इट्स रियली इन द, डोंट होल्ड मी अगेंस्ट इट अगर ऐसा ये चीज़ ना हो, बट कैटेगरीज होंगी एक्सीलेंट, गुड एंड नॉर्मल सर्टिफिकेट के. सो यस, ठीक है, चलें.